give a brief introduction. Mhm. In the words of Winston Churchill, success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Welcome, ladies and gentlemen, to the 15th Founders Day webinar of Jagriti, the enabling unit of Sri Guru Gobind Singh College of Commerce, Delhi University. I'm thrilled to be your host for this momentous occasion. Our agenda promises an insightful journey through various segments. So let's dive right in. Allow me to share a glimpse into Jagriti. The enabling unit launched on 9 March 2010. The prime objective is to assist differently able individuals right from the start of their college journey. Jagriti not only serve as an enabling unit but also live up to its name, fostering awareness and sensitizing the public to the challenges faced by the differently able individuals. Opening the event, we have an integrated presentation on ChatGPT and Gmail. Standard View Advanced. Get ready to explore the cutting edge advancements in technology that shape our digital interactions daily. Following this, we delve into the heart of today's celebration, the 15th annual webinar. It's a test statement to our shared journey and accomplishments over the years. Join us as we reflect on the past and envision a future filled with innovation and growth. Our current position is a result of the divine blessings we have received from the Almighty, leading us to where we are today. To help us connect with our inner selves, we have the privilege of having Visma, the Divinity Society of our college. The term Vismar translates to spiritual ecstasy, and the society has played a significant role on our campus for the past 2 decades. Vismar has consistently been recognized as one of the best divinity societies in both Delhi University and IP University. Its excellence is evident in its top ranking in inter-college kitten competitions, showcasing the dedication and talent within the society. As we embark on a spiritual journey, I kindly request the audience to cover their heads as a mark of respect and don't clap after the completion of the Shabad. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਗ ਦਸਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਇਨ ਬਿਦ ਇਹੋ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ ਰਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਇੱਕ ਤਾਲ 12 ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੀਤ 3 ਤਾਲ 16 ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਬੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕरें।
so much, Divinity Society, for enlightening us and giving us a great beginning to this webinar. Today we have with us Dr. Muhammad Atif as our guest speaker from Jamia Millia Islam. Team Jagriti welcomes you, sir. Kindly accept our felicitation. Thank you very much. Thank you, sir. I'm pleased Next, to be we here. have our principal, sir, Dr. Jatinder Veer Singh. Team Jagriti requests sir to kindly accept our felicitation. Moving on, we have our convener, Mr. Ritesh Kumar, sir. Team Jagriti requests sir to kindly accept our felicitation. Thank you so much. Next, we have our co-convener, Professor Venu Gupta, ma'am. Team Jagriti requests ma'am to kindly accept our felicitation. Go ahead. Next, let's express our gratitude to the individuals who have played pivotal roles in making today possible. Our co-convener, Professor Dr. Renu Gupta ma'am, is the driving force behind Jagriti, tirelessly working towards achieving new goals for our community each day. She is a faculty member at Sri Guru Gobind Singh College of Commerce, University of Delhi, specializing in the Commerce Department. Notably, she holds a PhD in Finance from the Department of Commerce, DSC, DU, making her the first PhD recipient in the VH category in Commerce from the University of Delhi. Now, I request our co-convener, Professor Renu Gupta ma'am, to enlighten us with her kind words and welcome the audience. A very good afternoon to one and all. Am I audible? Yes, Yes. ma'am, you're audible. Yes, ma'am, you're audible. So, welcome our principal sir, Dr. Jatinder Veer Singh, our speaker, our guest, Muhammad Atif sir from Jamia Millia Islamia, our convener, Mr. Ritesh Kumar, and all the students and teachers, participants from various schools. So, today we have organized this webinar because we all know now it's a compulsion for all of us to use Gmail in standard view. Although we have been conducting this webinar for last 2 years and Muhammad Atif is very kind that he always accept our invitation to do the same. So this time we have added ChatGPT also, so that those who are not having any idea how to use it, they are also able to use it. And Gmail in standard view because we have earlier done this sessions last 2 times, so it would be a bit advanced. I hope nobody will mind it. And as regards to Jagriti, everybody knows by this time that it was launched on March 9, 2010. So this is very auspicious occasion for us that 15th seminar or webinar of Jagriti we are holding on the same date on March 9 and 2024, and it's not a deliberate attempt, it happened by chance, so it makes it more, auspicious, or you can say it's a coincidence. So giving a brief of Jagriti, it was launched on March 9, 2010 by a slogan, self-help is God's help, and we conducted a seminar, support system for disabled students at higher education level. Since then, conducting annual seminars, sensitization workshops, and taking students to NGO trip became annual activities of Jagriti. Other than creating help desks during admissions for the help of the students who are willing to take admission in the college and to help them throughout even after they are passed out. This webinar is one of an example of this thing. And the another thing is to give a message to the public. No, not inside the college, but also outside the college, to aware the public at large, and making the college disabled friendly were another objectives of Jagriti. Since 2017,
we have started conducting Saharsh, the fest which provide opportunity to students to showcase their talents. So various competitions have been organized this year also on February 24. And now students are adding to the colors of Jagriti. They are taking interviews of disabled celebrities and posting on YouTube. This is under scheme name Suffer. So we are hoping to start Job Mela so that disabled students are not only able to showcase their talent, but they are able to actually secure a good job, and for which they are working so hard and they are studying. So I hope this webinar will enhance our skills in, excelling in this Chat GPT and Gmail in standard view. So welcome Atif sir once again, and welcome all the participants. Thank you. So much, ma'am, for your kind words. Our principal, sir, Dr. Jatinder Bing Singh, brings 3 decades of teaching experience from the University of Delhi. He has served as a consultant to esteemed institutions like the World Bank, Asian Development Bank, and the National Commodity and Derivatives Exchange. His recent involvement in the SEBI committee on introducing options on commodities trading underscores his influence in the financial sector. Today, due to very busy schedule, sir would not be able to join us. Moving on with the session, we have honored to introduce today's speaker, Dr. Muhammad Atif, who will guide us through the intricacies of ChatGPT and Standard View Advanced. Dr. Muhammad Atif is Assistant Professor at Department of Commerce and Business Study at Jamia Millia Islamia, New Delhi. Prior to joining JMI in 2016, he has also served Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, Himachal Pradesh for 4 years. He holds a PhD in finance and has a teaching experience of over a decade. His teaching portfolio includes a range of subjects such as statistics, research methods, financial econometrics, and financial engineering. He has guided 2 doctoral research scholars and has supervised many master dissertations. His research interests revolve around various aspects of applied econometrics, financial markets, derivatives, asset pricing, and behavioral finance. As we transition, be prepared for an engaging guest session that promises valuable insights and perspectives from Dr. Muhammad Atif. Sir, you may begin with the session now. Over to you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you are. Thank you very much. Thanks for giving me this opportunity. I thank you, the entire college, specifically Principal Sir, Dr. Renu Gupta, and Convener Ritesh Sir, and the entire Jagriti team for making this possible. I'm happy to be here. I think I should share my screen and start right away. Yes, sir. You can. So, host kindly allowed me to share the screen. Yeah, Because somebody else is sharing. Yes. Yes, sir. Prableen, stop sharing the screen. Sir, you are allowed now. Yes, sir, you can share your screen now. My video Alt plus D buttons active. Okay. Please tell me, is the screen visible now? Screen sharing meeting controls. Share preview Yes, WM. Yes, sir. Okay. It's visible. Screen sharing meeting controls. Once again, thank you, and I welcome all the participants. Participants can now see Taking your out screen. their precious time and to attend this. Let's start. As we all know that Google has announced that the support for basic HTML will no longer be available and will be using standard view.
I'll be using a mixed language, and in case people are not comfortable, then please interrupt me. ओके, सो हम सब जानते हैं कि गूगल के दो व्यूज हैं. दैट मीन्स अगर हम जीमेल यूज करना चाहें तो दो व्यूज हमारे पास हैं. वन इज कॉल्ड द बेसिक HTML व्यू एंड द अदर वन इज द स्टैंडर्ड व्यू. We can log on to Gmail. So I'm logging on to my Gmail. Windows T Zoom Dash 2 DR mode left parent mode render. Invitation and resource. Use virtual PC cursor off. GI. Main region primary tab panel grid unread. Okay. So अगर किसी का भी Gmail account है, then we can directly log on to by opening Google Chrome, and then we can type either this gmail.com, and then after entering our username and password, then we are onto this page. Escape. So Escape. now first thing that we need to note is that which view are we presently in? Is it the basic view or the standard view? Now question arises, why do we need the standard view? हमें स्टैंडर्ड व्यू की जरूरत क्यों है? दो मेन रीजन है. पहला रीजन, गूगल ने बेसिक HTML व्यू को ऑलमोस्ट बंद करने का डिसीजन ले लिया है. और सेकंड चीज ये, स्टैंडर्ड व्यू इज एक्चुअली जस्ट वेरी गुड. जितने भी गूगल के फीचर्स हैं, जीमेल के बहुत सारे फीचर्स हैं, वो बेसिक व्यू में अवेलेबल नहीं है. हम उनका फायदा नहीं उठा सकते. सो अगर आप पूरा बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं जितने भी स्टैंडर्ड व्यू के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, दूसरे फीचर्स हैं, तो फिर हमें स्टैंडर्ड व्यू ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पेल चेक है, क्विक नेविगेशन है, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड व्यू में पॉसिबल हैं. और एक बार आप बेसिक से स्टैंडर्ड पर आ जाएंगे, then I promise, I assure you, you would not go back to basic HTML. Actually, it's very fast, convenient, and provides lots of options. Right? So I believe everybody is able to create an account on Gmail and then they have logged in. So पहले हम चेक करेंगे हमारा जो अभी Gmail का इनबॉक्स है वो कौन से व्यू में है. मतलब हम HTML व्यू में है या फिर स्टैंडर्ड व्यू में है. तो कोई सा भी आपके पास स्क्रीन रीडर हो सकता है. यू मे यूज JAWS, NVDA और एनी अदर स्क्रीन रीडर. बेसिक फंक्शनैलिटी सेम. तो लॉगिन के बाद आप सबसे पहले प्रेस करिए कंट्रोल होम. सो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल होम. Just tell me one thing, are you comfortable with the sound of my JAWS or do I need to slow it down? Top of file blank. Main region primary tab panel unread. Sorry, BL daily newsletter small like cap mutual fund inflows moderate. GI. Excuse Inbox me, left sir. parent 20,400. Yes, please. अगर पॉसिबल है तो थोड़ा कम कर लीजिए, if it is possible. Okay, of course it's possible, very much possible. Let me just slow it down. Slower, 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 slower. 16 volume level, 18 volume. Top of file. Slower, 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 slower. Main region primary. Fast, faster, faster. SGG unread. HDFC bank mode. Take. So Gmail पे लॉगिन के बाद हम सबसे पहले प्रेस करेंगे कंट्रोल होम. कंट्रोल होम, I'm pressing it. Top of file unread. It says HDFC top of file. unread. Unread, unread. BL daily news. GI. Inbox left parent. Top of file. Inbox Top left of parent. file it says inbox. एक बार डाउन एरो प्रेस करेंगे. Main region primary tab panel grid unread. Unread. Okay. BL daily news. Top of file unread. Use virtual PC cursor on. Inbox left parent. Inbox Okay. basic HD. तो कंट्रोल होम प्रेस करने के बाद अगर आपका अनाउंसमेंट आपको सुनाई देता है इनबॉक्स देन द नंबर ऑफ अनरेड ईमेल्स और नंबर ऑफ टोटल ईमेल्स यू हैव, इसका मतलब आप स्टैंडर्ड व्यू में हैं. एक बार डाउन एरो और प्रेस करिए. None selected. Inbox Then basic it says HTML. basic HTML view. It says basic HTML view. It means basic HTML view में स्विच करने का ऑप्शन अवेलेबल है. हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड व्यू में हैं. आई बिलीव दिस इज फाइन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल होम प्रेस करेंगे. अगर आपको अनाउंसमेंट सुनाई देता है इनबॉक्स और उसके बाद एक नंबर, इसका मतलब है कि आप स्टैंडर्ड व्यू में हैं. इसको फिर से कंफर्म करने के लिए एक बार डाउन एरो प्रेस करेंगे. देन इट विल से बेसिक HTML बटन. ओके, सो अगर आपको ये बता रहा है बेसिक HTML बटन, इट मींस आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड व्यू में हैं. इनफैक्ट अगर आपने बेसिक HTML व्यू को डिफॉल्ट सेट नहीं किया है तो आप जब भी लॉगिन करेंगे आप हमेशा स्टैंडर्ड व्यू में ही जाएंगे. गिव मी वन मोर मोमेंट, मैं स्पीड को और थोड़ी एडजस्ट कर देता हूँ. None select basic H inbox left pair. सो नाउ दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टैंडर्ड व्यू के लिए. जितने भी हमारे स्क्रीन रीडर हैं
उनके दो मेन मोड होते हैं। ये दो चीजें सबसे पहले हमें याद रखनी है जीमेल को यूज करने के लिए। जस्ट माइंड दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर वन इज योर कर्सर मोड एंड नंबर टू इज कीबोर्ड शॉर्टकट। तो पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारा जॉस का या फिर स्क्रीन रीडर का कर्सर है वो किस मोड में है। हमारे पास दो मोड अवेलेबल होते हैं, चाहे हम एनवीडीए यूज करें या फिर जॉस यूज करें, हमारे पास दो मोड हैं। वन इज कॉल्ड द वर्चुअल मोड and second one is the focus mode. Virtual mode and focus mode. Now how can we toggle between virtual mode and focus mode? So I'm telling you the key. अगर आप JAWS यूजर हैं तो आप JAWS की के साथ Z दबाएंगे, Z for Zulu. So now see, listen to this sound. What does it say? Use virtual PC cursor Use off. virtual PC cursor off. इसका मतलब ये कर्सर ऑन था, अभी ऑफ हो चुका है। I'm pressing once again. Use virtual PC cursor on. यूज वर्चुअल पीसी कर्सर ऑन। सो सेम ही कमांड है, इंसर्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो वर्चुअल कर्सर या तो ऑन हो जाएगा या फिर ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज द कमांड फॉर जॉज। मतलब ये अगर हमारा वर्चुअल कर्सर ऑफ है तो ये बन जाएगा, या जिसको हम कहते हैं फोकस मोड। फाइन। सिमिलरली जो एनवीडीए यूजर्स हैं वो भी अपने वर्चुअल कर्सर को ऑफ कर सकते हैं। उनके लिए की होगी, जो भी उनका एनवीडीए की है, मोस्टली इंसर्ट की ही हम इस्तेमाल करते हैं। सो एनवीडीए की के साथ आप स्पेस दबाएंगे। ओके, तो इंसर्ट के साथ स्पेस दबा देंगे तो आपका फोकस मोड आ जाएगा। एनवीडीए उसको बोलता है फोकस मोड, और जॉज में ये है हमारा वर्चुअल कर्सर ऑफ हो गया है। फाइन। सो मैं दोबारा बता देता हूँ, किसी भी वेब पेज को नेविगेट करने के लिए हमारे पास दो मोड हैं। पहला मोड कहलाता है वर्चुअल मोड और दूसरा मोड होता है हमारा फोकस मोड। फाइन। जॉस की लैंग्वेज में जॉस फोकस मोड उसको नहीं बोलता है। जॉस सिंपली सेज दैट वर्चुअल कर्सर ऑन एंड वर्चुअल कर्सर ऑफ, राइट, एंड एनवीडीए विल से लाइक फोकस मोड एंड वर्चुअल मोड। तो ये चीज सबसे पहले समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम जीमेल पे लॉगिन करेंगे, बाय डिफॉल्ट हमारा जो कर्सर है वो वर्चुअल कर्सर होगा, जिसके थ्रू हम बाकी वेब पेजेस जैसे हम यूज करते हैं जीमेल को भी वैसे ही यूज करेंगे। ठीक। तो वर्चुअल कर्सर ऑन ऑफ करना हमें आ गया है। सेकेंड चीज हम जाएंगे अब कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर। हमें अपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स एनेबल करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले ध्यान रखिए आपका जीमेल स्टैंडर्ड व्यू में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, लिंक्स लिस्ट बनाएंगे। इट्स क्वाइट सिंपल। आप इंसर्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे, इंसर्ट F7। एनवीडीए के लिए भी आई थिंक सेम ही है, इंसर्ट F7। तो आई एम डूइंग इट। Links list लिंक्स dialog. लिस्ट, Link S security alert S starting in an hour S salary dash S security alert dash home skip the content B boost finance B become B boost B become rich B boost financial सो यू home सी skip अगर आपका स्टैंडर्ड व्यू में सेट नहीं है तो लिंक लिस्ट बनाकर आप S प्रेस करते जाइए जब तक आपको सुनाई ना दे स्टैंडर्ड व्यू। ओके, बिकॉज हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है, दैट्स वाई आपको वो लिंक कभी अनाउंस नहीं हुआ। अदरवाइज स्टैंडर्ड व्यू में हम ऐसे सेट करेंगे। सो सपोज हम सब स्टैंडर्ड व्यू में आ गए हैं। नाउ escape लेट्स प्रे कंट्रोल होम। escape inbox left parent 25 slower आई एम गोइंग एट द टॉप, कंट्रोल होम, inbox और left parent अब हम बटन्स पे नेविगेट करते हुए सेटिंग्स पर जाएंगे। ओके, सो कई तरीके हैं, आप डाउन एरो प्रेस करके जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली यू कैन कीप प्रेसिंग बी। तो मैं बी प्रेस कर रहा हूं, देखते हैं क्या आता है। basic HTML view ओके, button बेसिक HTML व्यू ये हमें नहीं चाहिए। main menu मेन button मेन्यू ये भी expanded नहीं चाहिए। देन advanced search options एडवांस button सर्च ऑप्शंस, search mail सर्च button मेल, support button menu सपोर्ट, collapse menu settings button सेटिंग्स। ओके, हम सेटिंग्स पे आ गए हैं। सो सेटिंग्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं या तो स्पेस प्रेस करके या फिर एंटर प्रेस करके। मैं नोटिस कर रहा हूँ काफी दिन से, अगर हम स्पेस बार प्रेस कर रहे हैं तो सेटिंग्स का मेन्यू ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं एक बार कंट्रोल प्रेस करूंगा। enter banner region settings ओके, button to act सेटिंग्स पे गए, हमने एक बार एंटर प्रेस किया। नाउ लेट्स प्रेस टैब। close button to ये कह रहा है activate क्लोज, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन, see all settings button सी to ऑल activate press सेटिंग्स। enter सी ऑल सेटिंग्स, तो हम ऑल सेटिंग्स पे एंटर कर देंगे। enter ओके, tab हमारे पास अब सारी सेटिंग्स यहाँ पर खुल गई हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स।
So find करिए Control F Virtual and find. simply JAWS file. type keyboard K-E-Y. KEYB B-O-A-R-D. keyboard. Enter. Enter. General tab selected. Okay, एक बार space दबाएंगे. Escape. Virtual. Link. Learn more about keyboard shortcuts. Keyboard shortcuts. Learn more. Keyboard shortcuts off. Radio button not checked. 1 of 1. Keyboard shortcuts off. ये radio button uncheck है. अगर आपने keyboard shortcut on नहीं किए हैं, so आपके केस में ये on दिखाएगा. Now press down arrow once again. Keyboard shortcuts on. Radio button Keyboard checked. 1 of 1. shortcuts on. Radio button checked. तो गाइज मेरे केस में कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑन हैं. अगर आपके केस में ऑन नहीं है, इस सेकंड ऑप्शन पर आकर एक बार स्पेस प्रेस करिए. ओके, तो सेटिंग्स में जाएंगे, कीबोर्ड सर्च करेंगे और कीबोर्ड शॉर्टकट ऑन पे हम स्पेस बार से इसको चेक कर देंगे. राइट, इसके बाद हम बी प्रेस करते चलेंगे. बी मींस हम बटन्स पे जा रहे हैं और हम सेव चेंजेस पर पहुंचेंगे. सो बी प्रेस करके सेव चेंजेस पर जाएंगे. मेरे केस में जो ऑलरेडी टर्न ऑन है. Keyboard shortcuts off. Radio button off. space. Keyboard shortcuts off space. Column 2 row 24. Keyboard shortcuts on. Radio button checked. Okay. 1 of. Edit sign. Delete zip side. Bold. Ital. Under text. Color link. Insert image. Align button numbered list. More formatting. Create a new size. Bold. Ital. Under text. Color link. Insert image. Align button numbered list. Bulleted. Indent less. Indent more. Quote. Left. Okay. Remove तो formatting. गाइस Left. अगर हम ये बी प्रेस करते जाएंगे ना, तो हम इन बटन्स पे जाते जाएंगे. बिकॉज मैंने कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं किए हैं. मेरा कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑन थे. सो अगर ऑफ होते तो फिर यहाँ सेव चेंजेस दिखाता. मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Virtual file. Enter. To active link. Learn more. Keyboard shortcuts space. Keyboard shortcuts off. Radio मैं एक button बार ऑफ checked. कर 1. रहा हूँ, फिर आपको ऑन करके वापस से दिखाता हूँ. Edit sig. Delete side. Bold. Ital. Under text link. Insert it. Align but numbered. More for. Create a new size. Bold. Ital. Under text link. Insert it. Align numbered. Bulleted. Indent. Quote. Remove. Save changes You see button. save changes. Okay. Save Cancel button. changes and then cancel. Save changes button. सेव चेंजेस पे आप एंटर करेंगे, आपके कीबोर्ड शॉर्टकट्स या कोई भी जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगी. आई होप इट्स क्लियर. मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ. Yes. दैट Escape. मींस आफ्टर Escape. लॉगिंग इनटू जीमेल, कंट्रोल होम प्रेस करिए, Settings देन dash m dot कीप प्रेसिंग बी जब तक आप सेटिंग्स पर ना आ जाएं. Basic 8 main met advanced search support settings Google Apps button settings सेटिंग्स button. बटन एंड सेटिंग्स के बाद आप वापस से बी दबाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे एप्स पर. हमें एप्स पर नहीं जाना है. Google गूगल Apps एप्स, button. Settings button. सेटिंग्स पे एंटर प्रेस करेंगे. Enter banner regions. Google Apps button collect. Google account. Settings button. सेटिंग्स एक्टिवेट नहीं हुई थी, सो प्रेस वंस अगेन. Enter. Google Apps button Again, did collapse not to act. open. Settings but enter. Google Apps button settings button to add escape. Use virtual PGI. Confirm use virtual P settings dash add escape visited. Main advanced search mail support setting Google Apps but settings button enter banner read Google Apps button Google account settings button to add Google Apps button settings button Second. escape hide side panel toggle cancel save changes Okay. cancel button Settings were already open. That's why I'm not able to search it again. Anyway, so if you have any query, you can ask. I think we all know two things. One thing we learned is how to turn on virtual mode and focus mode, and second thing how to enable keyboard shortcut. ये second step बहुत important है, because अगर keyboard shortcuts हमारे on नहीं हैं तो standard view का हम पूरा benefit नहीं ले सकते. Okay, so save changes save change cancel but और enter कैंसिल जो भी आप करना चाहें यहाँ पर कर देंगे. कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर आपके ऑन नहीं थे table तो column उनको 1 ऑन row करके 1 main सेव region चेंजेस primary करेंगे. tab panel grid Okay. unread BLD सो नाउ वर्चुअल कर्सर और कीबोर्ड शॉर्टकट्स हमारे ऑन हो गए हैं. सो वर्चुअल कर्सर को ऑफ करते हैं. जॉस में हम प्रेस करेंगे इंसर्ट जेड एंड एनवीडीए यूजर्स प्रेस करेंगे इंसर्ट स्पेस. तो आई एम टर्निंग इट ऑफ. use virtual PC cursor off यूज वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ. अब वर्चुअल कर्सर ऑफ हो चुका है. मतलब ये जो वेब पेज के हमारे रेगुलर कमांड होते हैं, जैसे अगर हम एच प्रेस करते हैं तो हम हेडिंग्स पे नेविगेट कर सकते हैं, या फिर अगर हम ई प्रेस करते हैं तो दूसरे एलिमेंट पर जा सकते हैं. तो अभी वेब पेज के शॉर्टकट्स काम नहीं करेंगे. आई रिपीट, व्हेन आवर वर्चुअल कर्सर इज ऑफ देन आवर रेगुलर वेब पेज कमांड डू नॉट वर्क. ओके, सो नाउ वी विल बी एबल टू यूज ऑल दी शॉर्टकट्स दैट जीमेल हैज प्रोवाइडेड. तो जीमेल के कुछ इनबिल्ट शॉर्टकट्स हैं जो हम वर्चुअल कर्सर को ऑफ करने के बाद एक्सेस करेंगे. इनमें से कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत यूजफुल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ. उसके अलावा इन शॉर्टकट्स को एक्सेस करने का एक आसान तरीका है. जब भी आप जीमेल पर या फिर किसी भी वेब एप्लीकेशन पर हो, इफ यू प्रेस
शिफ्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क मींस अगर हम क्वेश्चन मार्क को प्रेस करें तो हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स आ जाएंगे. लेट्स ट्राई दिस. Quest alert. Keyboard shortcuts. Keyboard shortcuts. Open in a new window. Vertical Okay, bar तो close. कीबोर्ड शॉर्टकट्स आ गए हैं. आई प्रेस शिफ्ट एंड देन दैट क्वेश्चन मार्क. ओके, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर आपका कर्सर वर्चुअल कर्सर ऑफ है तो फिर आप इस टेबल को ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे. मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक बार आपने क्वेश्चन मार्क प्रेस करके कीबोर्ड शॉर्टकट्स का स्क्रीन सामने ला लिया है, सामने आ गया है, तो फिर हमें कर्सर अपना ऑफ करना पड़ेगा. तो इसकी थोड़ी सी हमें आदत डालनी है कि हमें कर्सर कभी ऑफ करना है, कभी ऑन करना है. तो अभी मैं अपना कर्सर वापस से ऑन कर रहा हूँ. Use virtual PC cursor on. Virtual cursor on, and see now I can just press down arrow and read what's there. Table with 2 columns and 21 rows. Nesting Okay, level. 2 column, 21 rows. Let's see what's there. Column header. Compose and chat. Shift plus escape colon. Focus main window. Shift escape, focus main window. Escape colon. Escape, Focus latest chatter. focus latest chat. Control plus. Advance to next chatter. Control plus. Advance to previous chatter. Compose. And see, there is one more way to navigate tables. आप insert के साथ space bar दबाएं और T प्रेस कर दें. Insert, space and T. So you will be in table view and it will be easier to navigate. Okay. So इस table के बाद फिर एक table और है. Let's go there. Table with 2 columns and 32 rows. Column 1. Formatting column header. Column It's header. about formatting. Control undo. Control plus Y code redo column head. So इन commands को भी आप देख सकते हैं. Then next. Table with 2 columns and 37 rows. Column 1. Row 1. Jumping. G then तो I ये सबसे colon. important commands हैं. ये जो तीसरी टेबल में हम लोग आए हैं, jumping. G for go and I for inbox. So अगर आपका virtual cursor off है और आप प्रेस करते हैं GI, then you will directly move to inbox. Go to Go inbox. to inbox. G then S G colon. then S. G then S. Go to start Go to convers. start conversations. We'll talk about it. G then B G colon. followed by B. Go to snooze Snooze conversation. conversations. G then T colon. Go to send messages. G then D colon. Go to drafts. G then A colon. Go to all mail. G then C colon. Go to contacts. G then L colon. Go to label. Okay. Escape तो table. आपको ये Escape. कीबोर्ड Escape. शॉर्टकट्स याद करने की जरूरत नहीं है. कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स हमें याद रखने हैं, बट अगर आप भूल जाएं तो क्वेश्चन मार्क प्रेस करके हम इन शॉर्टकट्स की लिस्ट को वी कैन जस्ट हैव देम ऑन द स्क्रीन. ओके, एंड वी कैन नेविगेट देम. बट एक चीज का ध्यान रखिए, आई रिपीट, इन ऑर्डर टू रीड दिस कमांड्स योर वर्चुअल कर्सर शुड बी ऑन. ओके, सो नाउ मैं अपना कर्सर वापस से ऑफ कर रहा हूँ. इंसर्ट Z. Use virtual PC cursor off. ओके, सपोज अब मैं अपने सेंड मेल्स में जाकर देखना चाहता हूँ कि मैंने कौन कौन से रीसेंट मेल्स सेंड किए हैं. आई विल प्रेस G followed by T. G. T. Main region. Grid. The colon Zainab 2. So I Invitation. send it to Zainab. Then next, The colon Zainab. Test. The colon Amar dot core then dot I dot wrote dot. it to Amar Kaur. The colon Zainab. Group. The colon Zainab. The colon Shahina dot Then pa. to Shahina. The colon Shahina dot important unread. The colon Samish. To Akanksha. Somesh. Start. The colon D slash Then O2. to the Response. department. Now you see that means we can just directly just navigate them by pressing From Sujay Martis to up arrow everyone. and down arrow. Okay. So मेल को पढ़ना काफी आसान है, और किसी भी चीज को अगर हमें ओपन करना है, Windows Zoom dash 2 running Windows but DR mode left Zoom tap screen sharing meeting controls 7 of space screen sharing Ulta audio now muted. Ulta audio now unmuted. okay, there was a query in the chat. Somebody was asking where is the question mark. Basically question mark कीबोर्ड पे जो आपका स्लैश वाला साइन होता है ना, अगर हम उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है. जैसे आप वर्ड में टाइप करते हैं, तो इफ यू प्रेस द की जिसमें स्लैश है, अगर आप स्लैश प्रेस करेंगे तो स्लैश आ जाएगा. एंड अगर आप उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं देन इट विल शो यू क्वेश्चन मार्क. ओके, तो आपको शिफ्ट के साथ वो स्लैश वाली की ही प्रेस करनी है. From Sujay Okay, Martis to everyone. शिफ्ट के Yes साथ sir. स्लैश Thank you. प्रेस करेंगे, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. ओके, इट विल ऑटोमेटिकली शो यू द लिस्ट ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स. Ulta audio now muted. Windows D. Windows D. Zoom dash 2 running Windows button to activate DR mode. JAWS 2021 dash 1 enter. JAWS professional. Alt Z. JAWS version 2021. JAWS.
Menu escape leaving menu bar. Windows taskbar DR JAWS 2021-1 running window button to activate. Press space DR mode left zoom dash DR mode left parent mode right parent dash Chrome dash 1 running window button zoom dash 2 running window enter. Alt Windows zoom dash task screen sharing need enter screen sharing alt audio now unmuted. Windows zoom dash 2 running DR mode left parent mode right enter. Use virtual PC cursor off send mail. Slower. So guys, ये नेविगेशन वाली कीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेट्स से कि मैं जाना चाह रहा हूँ कि मेरे अपने इनबॉक्स में जाना चाह रहा हूँ. I'll simply press G then I. G I main region primary tab panel तो grid इनबॉक्स में unread जाने का DL शॉर्टकट GI, सेंड मेल के लिए G then T, ड्राफ्ट के लिए GND. और जैसे कई बार क्या होगा ना, आपके पास लेट्स से कोई मेल आया और वो मेल या तो बाय चांस आपने उसको आर्काइव कर दिया या फिर बाय चांस वो स्पैम में है. सो सारे मेल अगर आपको एक साथ देखने हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको ऑल मेल्स पे जाना है. वी नीड टू गो टू ऑल मेल्स. वी कैन डायरेक्टली गो देयर बाय G फॉलोड बाय A फॉर ऑल. ओके. सो जो शॉर्टकट्स है काफी इंट्यूटिव भी हैं, आपको ऐसे कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. जैसे इनबॉक्स I, सेंड के लिए T एंड सेंड के लिए S इसलिए नहीं है, S को हमने अलॉट कर रखा है स्टार्ड मेल पर. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. तो कई सारे इंपॉर्टेंट मेल्स आपके ऐसे आते हैं जिनको आप फ्यूचर में एक तरीके से इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना चाहते हैं. सो जीमेल में दो अलग अलग चीजें हैं. इंपॉर्टेंट का मार्कर अलग है और एक मेल पे आप एक स्टार लगा सकते हो, उसका मार्कर अलग है. इनफैक्ट काफी सारे स्टार हम यूज कर सकते हैं. बीइंग ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, मैं कुछ बहुत ज्यादा स्टार यूज नहीं करता. आई जस्ट यूज अ सिंगल स्टार. बाकी जो साइटेड पर्सन्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं कि वो स्टार का कलर भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वहाँ पर एक रेड स्टार लगाना है या फिर येलो या फिर कोई और सा. हम भी कर सकते हैं. दैट मीन्स इवन पीपल हु यूज दिस स्क्रीन रीडर दे कैन ऑल्सो यूज, बट आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी यूजफुल. ओके. तो हमें बहुत सारे जो स्टार्स की कैटेगरी हैं उनके कलर्स हैं येलो ब्लू ग्रीन, उनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. बट फिर भी अगर आप लोग करना चाहें तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे फिर आप इसको ऑन कर सकते हैं कि आपको कितने स्टार्स चाहिए. आपको रेड के साथ ब्लू ग्रीन येलो ये सारे कलर्स भी चाहिए कि नहीं. तो आज हम इसको कवर नहीं करेंगे. अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हमें सिर्फ कन्वर्सेशन को स्टार करना आना चाहिए. सो स्टार करने से कॉन्वर्जेशन एक अलग फोल्डर में चली जाती है. सिमिलरली जिन मेल्स को आप रेगुलर पढ़ते हैं, लाइक जो मेल आप रिसीव करते हैं जिन सेंडर से, एंड इफ यू रेगुलरली रीड दोज ईमेल्स, देन जीमेल विल ऑटोमेटिकली लेबल देम एज इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट ईमेल्स अलग हैं और स्टार वाले ईमेल अलग हैं. इमेजिन करिए आपके पीसी पर काफी सारे फोल्डर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड है, ऐसे ही और काफी सारे फोल्डर होते हैं, म्यूजिक है, पिक्चर्स है. सो सिमिलरली जीमेल के अंदर भी ना ये फोल्डर्स ही हैं एक तरीके से. जीमेल कॉल्स देम लेबल्स एंड यू कैन थिंक लेबल्स एज फोल्डर्स. जैसे इनबॉक्स, इनबॉक्स क्या है? इनबॉक्स एक टाइप का फोल्डर है. सिमिलरली सेंट, सेंट वाले लेबल में आपको क्या चीजें मिलेंगी? जो भी मेल आपने सेंड किए हैं वो आपको सेंट लेबल में मिलेंगे और हम कह सकते हैं कि ये एक सेंट का फोल्डर है. सिमिलरली ऐसे मेल जो आपने कंपोज किए मगर आपने वो सेंड नहीं किए, फाइन, यू विल गेट देम अंडर द लेबल कॉल्ड ड्राफ्ट. ओके. ऐसे ही जो मेल आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपने उनको एक स्टार कैटेगरी अनाउंस कर दी है, स्टार कैटेगरी अलॉट कर दी है. सो वो सारे आपको स्टार फोल्डर के अंदर मिलेंगे. ओके. सो ये मेन चीजें, मेन हमारे लेबल्स या फोल्डर्स हैं, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट, आर्काइव, काफी सारे हैं. तो तीन चार मेन हैं, इनके शॉर्टकट्स हम ध्यान रखेंगे. GI फॉर इनबॉक्स, GS फॉर स्टार्ड, GT फॉर सेंट मेल्स, GD फॉर ड्राफ्ट्स. एंड प्लीज नोट वंस अगेन, नेविगेशन शॉर्टकट्स के लिए जरूरी है आपका वर्चुअल कर्सर ऑफ होना चाहिए. ओके. अगर आपका शॉर्टकट काम नहीं करता तो आप चेक करिए इंसर्ट Z दबाकर. फॉर एग्जांपल मैं अभी चेक करता हूं कि मेरा कर्सर ऑन है कि ऑफ है. तो इसने कहा Use virtual कर्सर ऑन, PC मतलब cursor अब on. ऑन हो चुका है. मैं इसको वापस से ऑफ कर रहा हूँ. इंसर्ट Z. Table column 1 ओके. row 1. कर्सर Use ऑफ है virtual मतलब PC जितने cursor भी off. शॉर्टकट्स हैं वो सारे शॉर्टकट्स अभी काम करेंगे. नेविगेशन वाले मैंने आपको बता दिए हैं, GI GT GA. ओके. नेक्स्ट जो ईमेल के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो ये है कि हमें एक मेल कंपोज करके सेंड करना होता है. हमें मेल कंपोज करके सेंड करना होता है, राइट. तो कंपोज के लिए हमारे पास दो शॉर्टकट हैं. एक शॉर्टकट है C फॉर कंपोज, और एक शॉर्टकट और है दैट इज D फॉर दिल्ली. सो C फॉर चैट. अगर आप
लेट्स से जो कई सारे साइटेड लोग हैं वो क्या प्रेफर करते हैं कि मेल की विंडो के अंदर ही एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो जाए और उसी में वो कंपोज करें ताकि उनको स्क्रीन का बाकी हिस्सा विजिबल हो. फाइन. But people who are visually impaired, they need not access to that portion. So for them, D is fine. So you can use both. आप C से भी कंपोज कर सकते हैं और D से भी. अगर आप D से कंपोज करेंगे एक पूरा नया टैब ही खुल जाएगा. तो मैं पर्सनली कंपोज नेक्स्ट टैब में करता हूँ, तो मैं D के थ्रू मेल कंपोज करता हूँ. ओके, so I'll show you how to do that. And then similarly, okay, let's compose a mail. Then C, I'm pressing D. अगेन ध्यान रखिए, इन शॉर्टकट्स के काम करने के लिए जरूरी है दो चीजें. नंबर एक आपका वर्चुअल कर्सर ऑफ हो, और सेकंड चीज आपने अपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑलरेडी एनेबल कर रखे हैं. आई एम प्रेसिंग डी फॉर कंपोजिंग. डी. D. Use virtual PC cursor on Gmail. Gmail main region. New message region. 2. Search field extended. ओके, Select. सो मैंने डी प्रेस किया Slower. और नए टैब में मैं आ गया हूँ और मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है कॉन्टैक्ट्स में. मींस मुझे किसको ये मेल भेजना है. लेट्स से मैं डॉक्टर रीनू को ये मेल भेज रहा हूँ एंड आई स्टार्ट टाइपिंग. R extend E re-extended select list box not select N ran extended select list box not selected Randall at Stern dot इसी जैसे not आपने टाइप selected करना Renu शुरू Gupta किया ना, लेट्स से मैंने 3 लेटर टाइप किए REN. तो REN से मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके नाम आने शुरू हो गए हैं. अभी मैं डाउन एरो प्रेस कर कर इनको एक्सेस कर सकता हूँ और मुझे पूरा ईमेल टाइप करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो लेट्स से not selected Renu Gupta, Gupta I at just press enter and it will automatically be added. ओके, Enter. Search दूसरा field ईमेल मुझे extended सर्च select करना है. आई विल स्टार्ट टाइपिंग एंड आई नीड नॉट टाइप फुल नेम. लेट्स से आई एम टाइपिंग. ZA ZA extended select list box So not let's say I selected want to send Zainab it to Siddiqui Zainab Zainab. So first one is Zainab Siddiqui. not selected Then Zafaj it's Zafaj. 07 at gmail dot not selected Then Zakir second one, Hussain third one Hussain Zakir Zakir 3 Hussain. Then not Zakia Khan. selected You see Zakia ZA Khan से Zakia जितने भी underline Khan ईमेल्स हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सब की लिस्ट आ गई है. इस लिस्ट को आप डाउन एरो अप एरो प्रेस करके नेविगेट कर सकते हैं. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ताकि आपको पूरा ईमेल एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है. ऑफ कोर्स अगर आप किसी को पहली बार मेल सेंड कर रहे हैं तब ऑफ कोर्स वो कांटेक्ट में आपके नहीं होगा, तब आपको पूरा ईमेल टाइप करना होगा. ओके, सो यहाँ पर मुझे जैनब को ढूंढना है तो not ओके, जैनब selected सिद्दीकी. Zainab आई प्रेस Siddiqui एंटर Zainab एंड यू सी इट इज एडेड. enter search field सो अगर मुझे कॉन्टैक्ट्स में और भी लोग इसमें ऐड करने हैं सेंट लिस्ट में, आई कैन ऐड. एल्स अब मैं टैब दबाकर सब्जेक्ट में जा रहा हूँ. ओके, इट सेज subject edit सब्जेक्ट. type and text तो सब्जेक्ट, लेट्स से सब्जेक्ट हम इनवाइट करते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल. CONFERENCE space कॉन्फ्रेंस CAL को हम अनाउंस कर रहे हैं, सो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख दिया है. अगेन टैब प्रेस करेंगे, इट सेज message body edit मैसेज type बॉडी एडिट. ये आपकी मेल की मेन बॉडी है, यहाँ पर आप कुछ भी मेल अपना कंपोज कर सकते हैं. देन इसके बाद लेट्स सी टैब करते हैं हम कहाँ पहुंचते हैं. send left parent control dash enter right तो parent button to आप act लोगों ने सुना होगा, इसने कहा सेंड देन कंट्रोल एंटर बटन. सो अभी मैं इस बटन पर आ गया हूँ. इसने मुझे शॉर्टकट भी बताया. मतलब मैं अपने मैसेज में कहीं पर भी हूँ, चाहे मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में हूँ या फिर सब्जेक्ट में या फिर अपनी मेल की बॉडी में. व्हेन आई प्रेस कंट्रोल एंटर माय मेल वुड बी सेंट. ओके, व्हेन आई प्रेस कंट्रोल एंटर मेल विल बी सेंट. कभी कभी शॉर्टकट काम नहीं करता. इफ इट डजंट वर्क, कोई बात नहीं, आप टैब को दबाते जाइए और जब आप इस सेंड बटन पर पहुंचे सिंपली प्रेस एंटर और प्रेस स्पेस बार. ओके, सो मैसेज को सेंड करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एंटर. और इन केस दिस शॉर्टकट डज नॉट वर्क, सिंपली जस्ट कीप प्रेस टैब until you find send button, hit enter. सपोज मुझे यहाँ पर कुछ अटैच भी करना है, काफी आसान है. टैब दबाइए, more more send send options options, button menu press space to act attach attach files files. button menu तो press space अटैच to फाइल पे आप जैसे ही स्पेस बार प्रेस करेंगे, space open dialog file name colon edit ब्राउजर विंडो खुल गई है. यहाँ से आप सेलेक्ट करिए, आप 10 फाइल 15 फाइल कितनी भी फाइल एक साथ अटैच कर सकते हैं. आपको एक एक कर कर अटैच करने की जरूरत नहीं है. पर्सनली मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि मुझे 5 डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं. सो एक टेम्पररी एक फोल्डर बनाऊंगा, वो पांचों फाइल उस फोल्डर में रखूंगा. सिंपली आई गो टू दैट फोल्डर, ओपन दैट फोल्डर, प्रेस कंट्रोल ए
press enter and all the documents would be added directly. ओके, सो मतलब ये अगर मुझे एक से ज़्यादा फाइल्स अटैच करनी है और वो फाइल लेट्स से अलग अलग फोल्डर्स में है, तो अपने पीसी पे पहले उनको एक फोल्डर में ले आओ, एक ही बार में अटैच कर दो. अदरवाइज इट्स इजी, आपने एक बार अटैच किया, देन अगेन टैब प्रेस करके अटैच पर आइए और वापस से फाइल को अटैच करिए एंड यू आर गुड टू गो. ऑफ कोर्स आपका जो टोटल मेल है उन उन फाइल्स का साइज 25 MB 25 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए. ओके, इफ इट इज मोर देन 25 MB तो आप मेल सेंड नहीं कर पाएंगे, वो फिर आपको ड्राइव के थ्रू सेंड करना पड़ेगा, ड्राइव के लिंक के थ्रू. ओके, सो आई थिंक मेल कंपोज करना इज क्वाइट इजी. एंड सी वन मोर थिंग दैट वी कैन डू हियर, दैट इज we can use the power of ChatGPT. I'll just go to that in a while. Let me just finish this mail. Again, अगर आप ये मेल भेजना नहीं चाह रहे हैं, then keep pressing tab. Files of type combo box. All files left parent star. Escape. Compose mail. Slower. Send. Left parent control. More send options. Attach files button menu. Press. Insert link. Left parent control dash. इसे insert emoji. तो emoji भी आप enter कर सकते हैं, smiling face और किसी और emotions वाले emoji ऐड कर सकते हैं. Insert Insert files using Drive. Google Drive से भी directly files ऐड की जा सकती हैं यहाँ से. Insert photo button menu. Press space to toggle insert signature. Gmail trademark. More option. Discard draft. Add CC. More options button menu. Press space to activate the menu. तो गाइस डिस्कार्ड ड्राफ्ट का एक शॉर्टकट है. लेट्स से आपने पूरा मेल कंपोज किया, उसके बाद आपको लगा नहीं ये मेल मुझे नहीं भेजना है, you don't want to send that mail, then simply press Control Shift D. Control Shift D. It's for discarding the mail that you are composing. Okay, but there is a problem. Problem is that ये शॉर्टकट हमेशा काम नहीं करता. मेरे केस में भी मैंने कई बार ट्राई किया. सो करीबन 50% ही ये शॉर्टकट काम करेगा. Control Shift D. ओके, नो प्रॉब्लम. अगर ये शॉर्टकट काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप टैब प्रेस करते जाइए टिल यू फाइंड द बटन विच सेज डिस्कार्ड ड्राफ्ट. तो मेल को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं. अगेन लेट्स से आपको सेंड में आपको सीसी पार्टिसिपेंट्स ऐड करने हैं, यानी कि आप मेन मेल लेट्स से आप अपने प्रोफेसर को भेज रहे हैं और आप अपने कलीग्स को सीसी में रखना चाह रहे हैं. ओके, सो डिस्कार्ड ड्राफ्ट के बाद आप देखेंगे देयर इज अ बटन फॉर सीसी and there is a shortcut, Control Shift C. Control Shift C is for adding CC participants and Control Shift B is for blind carbon copy. Okay, so अगर आप मेल कुछ ऐसे लोगों को भेजना चाह रहे हैं और आप बताना नहीं चाह रहे कि आपने मेल किसको भेजा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने पार्टिसिपेंट्स को सेंड में और सीसी में ना डालकर आप सब ईमेल को आप बीसीसी में डाल दीजिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी. तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने 10 लोगों को मेल भेजा होगा तो किसी भी दूसरे इंसान को ये नहीं पता होगा कि ये मेल कितने लोगों को गया है. ओके, सो बीसीसी का एक एडवांटेज ये है. आई बिलीव कंपोज पार्ट इज ओवर. सो हम कैसे कंपोज करेंगे, शॉर्टकट हमारे पास है सी और डी. ध्यान रखिए शॉर्टकट तभी काम करेगा जब आपका वर्चुअल कर्सर ऑफ है. ओके, तो सी या डी प्रेस करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम सेंट वाले कॉलम में आएंगे. देन हम ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे, टैब करके सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट टाइप करेंगे. देन हम टैब करके जाएंगे अटैचमेंट्स पर, सॉरी मेन बॉडी पर, वहां पर अपना पूरा मेल लिखेंगे. देन टैब करके सेंड बटन पर जाएंगे. ओके, और कंट्रोल एंटर से भी हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं. तो कंपोज करना काफी आसान है, फाइल अटैच भी हो सकती हैं. इसके अलावा जीमेल से भी आप यहाँ अटैच कर सकते हैं. आई एम डिस्कार्डिंग दिस मेल एंड लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्टफ. Discard draft. Left parent enter. Mail.google.com says cancel okay, button. OK button to act. Yes. Enter. Use virtual PC cursor off. Inbox left parent 20,000. गाइस मेल कंपोज हमारा यहाँ पर हो गया है. अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जिसका हम रेगुलर यूज करते हैं, तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जीमेल में सभी को आनी चाहिए. ऑफ कोर्स पहली चीज मेल कंपोज करना, फाइल्स अटैच करना, मेल सेंड करना. ओके, तो मेल कंपोज करना पहली चीज है. सेकंड चीज है आपने कोई मेल आपके पास इंपॉर्टेंट आया, और बहुत सारे मेल हमारे पास रोज आते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनमें से जो इंपॉर्टेंट मेल हैं उनको एक अलग फोल्डर में डाल दें. ऑफ कोर्स हम बहुत सारे फोल्डर बना सकते हैं, बट अभी मैं बात करूंगा सिर्फ स्टार्ट फोल्डर की. ओके, तो किसी भी आप अपने वर्चुअल कर्सर को पहले ऑफ करिए. ऑफ ही है वैसे. लेट्स चेक वंस अगेन. Escape.
Smart navigation, controls and tables. वर्चुअल कर्सर Use virtual ऑफ। PC cursor off. Slower, slower. वर्चुअल कर्सर मेरा ऑफ है और अभी मैं अप और डाउन एरो प्रेस करूंगा। लेट्स सी क्या बताता है ये। Main region, जब primary ये tab बोलते हैं panel, प्राइमरी grid, unread. टैब, इसका मतलब मैं अपने इनबॉक्स में हूँ। SGGSCC, तो me ये too. इनविटेशन Invitation लिंक link जो for मुझे annual. मिला है अभी। सो जब आप डाउन एरो प्रेस करेंगे सबसे पहले सेंडर का नाम अनाउंस होगा, उसके बाद जिस सब्जेक्ट से ईमेल आया है वो सब्जेक्ट आपका स्क्रीन रीडर अनाउंस करेगा। उसके बाद आपके ईमेल की जो पहली 2 या 3 लाइनें हैं ईमेल में वो बाहर से ही पढ़ी जा सकती हैं, आपको अपना पूरा मेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके। Unread, Axis Bank, planning a जैसे vacation, एक्सिस get बैंक का RS, मेल 1 है, million प्लानिंग ए वेकेशन सब्जेक्ट था और आगे उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो मेल की जो पहली 2 लाइन है कि आप कितना लोन अवेल कर सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसी कई बार हमें पूरा मेल खोलने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऊपर से ही देख सकते हैं और इसके लिए हमने कुछ भी की प्रेस नहीं करनी, वर्चुअल कर्सर ऑफ रखना है, आप डाउन दबाते जाइए और अपने मेल को नेविगेट करते जाइए। अपने मेल में हम ऊपर से नीचे पढ़ते जाएंगे। Unread, अनरेड ये Citibank सिटी India, बैंक का मेल important है। communication. Unread, Citibank India, Unread, Nike, treat yourself with the best of beauty, ladies, Marade, we, Unread, Swiggy, want cash, Unread, Nippon India Mutual, आर Unread, ब्लॉगर्स। R-bloggers, तो left लेट्स से bracket, R. ये एक इम्पोर्टेंट लिंक है जो कि अभी मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, मगर हाँ ये मेल मुझे इंपॉर्टेंट लगा और मैं चाह रहा हूँ कि ये मेल जब भी मेरे पास टाइम हो नेक्स्ट वीक में इस मेल को मैं तब पढूं। ओके। बट काफी चांसेस हैं कि एक वीक में मेरे पास काफी सारे और ईमेल आ जाएं, ये ईमेल नीचे पहुंच जाए और फिर मिस हो जाए। सो मुझे क्या करना है, अ, ये आर ब्लॉगर वाला ईमेल है। Unread, ओके, इट सेज Unread, आर ब्लॉगर्स। R-bloggers, left. सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ एस प्रेस करना है, एस। तो लेट्स सी मैं एस प्रेस कर रहा हूँ क्या होता है। S. Inbox left parent 20,487 right parent dash m.atif 1234 at gmail.com dash gmail इससे conversation पहले start. इनबॉक्स बताया कि कितने ईमेल्स हैं, फिर इसने बताया कॉन्वर्जेशन स्टार्ट, मतलब ये कन्वर्सेशन अब स्टार्ट हो गई है। और लेट्स से मैं अपने पूरे मेल को नीचे नेक्स्ट मेल देखता हूँ किसका है। Main region, primary tab panel, टीम grid, बैंक का, Unread, यार ये Team Bank इंपॉर्टेंट नहीं है Bazaar, मेरे 8. लिए। Important, OpenAI, Prodian NPS, important, Zoom 2, Unread, Quantinsti, Unread, Zomato, Unread, Amazon Business, Unread, Assisi Prudent, Unread, HDFC, Unread, HDFC, Unread, HDFC, ओके Unread, लेट्स से Citibank सिटी India, बैंक का मेल भी important, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मैं यहाँ पर भी एस प्रेस कर रहा हूँ और सी ये S. मेल भी मेरा स्टार्ट हो Inbox गया। left, ओके। conversation start. सो इस तरीके से ना मेल को हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसका क्या एडवांटेज है, लेट्स से आफ्टर 2 डेज 3 डेज मुझे भी याद आया कि यार कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स थे, मैंने उनको मार्क किया था, आई वांट टू रिव्यू देम, उनमें क्या था। तो आप डायरेक्टली सिर्फ उन मेल की लिस्ट निकाल सकते हो जिन पे आपने स्टार लगाया हुआ है। क्या तरीका है इसका, अगर आपका कर्सर ऑफ है सिंपली आप प्रेस करिए जी देन एस। तो आई एम प्रेसिंग जी एस। G. S. Main region, grid, start, Unread, इट सेज स्टार्ट, मतलब अभी सिर्फ वो मेल आ गए हैं जिन पे मैंने स्टार लगाया हुआ है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। start, सबसे Unread, पहले वही मेल है R-bloggers, जिसको left मैंने bracket, अभी R. लेटेस्ट स्टार किया है। इसके पहले किसको स्टार किया था, सिटी बैंक को स्टार Start, किया था, Unread, Citibank. Start, देन Unread, एचडीएफसी का मेल Serco, स्टार किया हुआ है HDFC. पहले। तो Start, नाउ यू सी Unread, जैसे Assisi Bank. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें रेगुलर लोगों के साथ शेयर करनी होती हैं। लेट्स से आपका सीवी है, आपने सीवी अपने ईमेल में अटैच कर लिया, उसके बाद आप उस मेल को स्टार कर लीजिए सो दैट वेन एवर यू नीड टू हैव एक्सेस टू दैट मेल सिंपली आप अपने स्टार वाले फोल्डर में जाइए और उस मेल को नेविगेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो ये स्टार लगाना और स्टार हटाना भी उतना ही आसान है, आप उस मेल पर जाकर एस प्रेस कर दीजिए, वो मेल आपका अनस्टार हो जाएगा। ओके। तो ये स्टार वाला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखिए, ये जो शॉर्टकट है स्टार स्टार ऐड करने का, दैट इज एस, इट विल वर्क ओनली व्हेन वर्चुअल कर्सर इज ऑफ। ओके। वर्चुअल कर्सर कैसे ऑफ होगा, जॉस के लिए इंसर्ट जेड और यही की है ऑन करने के लिए भी इंसर्ट जेड। फॉर एनवीडीए इट इज इंसर्ट फॉलोड बाय स्पेस, इंसर्ट स्पेस। ओके। तो गाइज हमें मेल को इंपॉर्टेंट मार्क करना आ गया है। इंपॉर्टेंट वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए बिकॉज क्योंकि गूगल ने इंपॉर्टेंट के लिए एक अलग सिंबल बनाया है और गूगल इन दोनों को अलग मानता है। जीमेल की लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट मेल अलग है और स्टार मेल अलग है। स्टार वाला मेल वो है जो आपने स्टार वाले फोल्डर में डाल दिया है। ओके। एंड इंपॉर्टेंट मेल वो सारे ईमेल हैं जो आप रेगुलर पढ़ते हो। तो इंपॉर्टेंट वाला फीचर उतना
यूजफुल मुझे नहीं लगा, स्टार वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी लेट्स से आपके पास एक कोई नया ईमेल आया, आप उसको स्टार में नहीं डालना चाह रहे हो बट आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क करना चाह रहे हैं, काफी आसान है। आप प्लस वाला साइन दबाइए शिफ्ट के साथ, जो ऊपर हमारे पास नंबर की होती है 1 2 3 4, यू प्रेस द प्लस साइन देयर, शिफ्ट प्लस, एंड देन उस पे इंपॉर्टेंट मार्क हो जाएगा। दोबारा सेम की प्रेस करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क हट जाएगा। ओके, तो गाइज हमने कंपोज करना सीख लिया है, मेल को स्टार करना सीख लिया है। थर्ड मोर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप कुछ मेल्स को डिलीट कैसे करें। कई बार बहुत सारे अनवांटेड ईमेल्स हमारे पास आ जाते हैं, एंड लाइक दे मेक आवर मेल crowded and we find it cluttered, clumsy, quite messy. In that case, we want to clean our inbox. So let's go to the inbox. I'm going to inbox by pressing GI. GI. Main region. Primary tab Okay, panel. Grid. मैंने GI Unread. प्रेस PL किया, daily. इनबॉक्स पर आ गया हूँ। तो लेट्स से मैं कुछ ईमेल डिलीट करना चाह रहा हूँ जो मेरे काम के नहीं हैं। Unread. ओके, HDFC Bank. HDFC Mode. बैंक एक Take प्रमोशनल control. ईमेल है, मुझे ये नहीं चाहिए, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या जरूरी है? अ, देखिए, दो चीजें हम लोग कर सकते हैं। या तो ईमेल को आप डिलीट कर दीजिए, वो इनबॉक्स से हटकर आपके ट्रैश के फोल्डर में चला जाएगा, और कुछ दिन बाद, 30 दिन के बाद या उसके बाद डिलीट हो जाएगा। एक चीज और भी है, आप ईमेल को डिलीट मत करिए। आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट अभी तो नहीं है, बट हो सकता है कि 1 साल 2 साल बाद आपको वो इंपॉर्टेंट लगे। सो इस केस में आप क्या करेंगे? डू नॉट डिलीट द ईमेल, रादर डिलीट इट, सेंड इट टू आर्काइव्स। जैसे इनबॉक्स का फोल्डर है, ऐसे ही अगर आप मेल को आर्काइव कर देंगे तो वो एक अलग फोल्डर में सेव हो जाएगा, इनबॉक्स से हट जाएगा, बट वो अलग सेव हो जाएगा, ताकि आप आर्काइव में फ्यूचर में आपको कभी जरूरत हो तो आप उसको एक्सेस कर सकें। ओके, लेट्स से आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ आपके ईमेल्स हैं, आपको फिलहाल लग रहे हैं कि ये अनइम्पोर्टेंट हैं, आपके टीचर्स ने आपको साथ कुछ नोट्स शेयर किए, कुछ वेब लिंक शेयर किए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, लेट्स से कि आपको कुछ आपकी टीम से, आपके बॉस से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया, आपकी सैलरी स्लिप्स हैं, अब आप नई जॉब में हैं, नए प्लेस पर हैं, अब वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, you find these things are no more important, then instead of deleting them, just archive them. मे बी 1 साल के बाद आपको अपनी सैलरी स्लिप की जरूरत पड़े, मे बी यू नीड द सेम लिंक, यू नीड दोज नोट्स। ओके, तो डिलीट भी कर सकते हैं, आर्काइव भी कर सकते हैं। सो इन दोनों के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले हम अपने मेल को सेलेक्ट करेंगे। ओके, मेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए काफी आसान है, यू सिंपली प्रेस एक्स, एक्स। तो आई एम प्रेसिंग एक्स, X. None selected. इट सेज SGGS सेलेक्टेड, selected. Unread. नॉट दिस वन। SGGS. एक्सिस बैंक, लेट्स से Unread. इसको ही Axis मुझे डिलीट Bank. करना है, मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, एक्स। Inbox left parent. X. Main region. Primary tab panel. Grid. Selected. Unread. Axis Bank. Planning a vacation. Get RS. 1,090,000. सिटी बैंक, इसको भी Unread. सेलेक्ट कर लेते Citibank हैं, लेट्स India. से। X. None selected. Unread. Selected. Unread. Citibank India. X. ओके, तो गाइस यू None सी, selected. ये मैंने मेल सेलेक्ट कर लिए हैं। इन केस अगर मुझे ये डिलीट करने हैं, देन आई विल प्रेस, आप अपना नमपैड देखिए जहां पर लिखा होता है 1 2 3, अगर आप शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे देन इट विल बिकम एक्सक्लेमेशन, 1 के साथ 2 प्रेस करेंगे इट विल बी एट द रेट, और अगर आप शिफ्ट के साथ, सॉरी, शिफ्ट 1 इज एक्सक्लेमेशन, शिफ्ट 2 इज एट द रेट, शिफ्ट 3 इज नंबर साइन, जो एक हैश की तरह, जिसको हैश भी बोलते हैं, हैश या नंबर साइन, एंड शिफ्ट 4 इज डॉलर। तो गाइस हम शिफ्ट और 3 प्रेस करेंगे, तो आई एम प्रेसिंग हियर शिफ्ट 3, Number. 4 conversations you moved to announce the trash. message 4 conversation move to trash। ये चारों कॉन्वर्जेशन ट्रैश में जा चुकी हैं। अब मानिए आपने गलती से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भी ट्रैश में भेज दिया, कुछ नहीं करना, इमीडिएटली जेड दबा दीजिए, अनडू हो जाएगा। सो लेट्स से, Z. ओके, और जी अगर काम नहीं करता, कंट्रोल जेड दबा दीजिए। ओके, तो Undo. कई बार जेड से काम चल जाता है, कई बार कंट्रोल जेड। सो इफ एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क। जो होस्ट हैं वो बाकी लोगों को अनम्यूट कर सकते हैं, अगर कोई क्वेरीज हो तो इमीडिएटली आई टेक अप दोस क्वेरीज बिफोर प्रोसीडिंग। Sure, sir. If anybody is having any doubts, they can post them in the comment section, or they can also unmute themselves and ask directly to sir. Else we can proceed. Yes, sir. Okay. A quick recap.
जब आप जीमेल पे लॉगिन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका वर्चुअल कर्सर ऑन रहेगा। कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज करने के लिए, स्टैंडर्ड फीचर्स का पूरा इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है आप पहले वर्चुअल कर्सर ऑफ करें। कैसे करेंगे? इंसर्ट जेड जॉस के लिए, इंसर्ट स्पेस एनवीडीए के लिए। ओके, सो ये तो हुआ हमारा नेविगेशन। दैट मीन्स आपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑन कर लिए, GI GT GD इसके थ्रू आप जा सकते हैं, C और D के थ्रू कंपोज कर सकते हैं, और किसी भी ईमेल को, चाहे वो मेल आपका ओपन हो या फिर आप अभी अपने इनबॉक्स के मेन पेज पर हो, then by pressing S we can add a star to that mail. ओके, तो आप स्टार वाले फोल्डर में भी जाके आप अपने इंपॉर्टेंट ईमेल्स चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कई बार अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, लेट्स से मुझे अपना पैन कार्ड कहीं पर भेजना है या फिर और कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कहीं भेजना है, सो मैंने अपने जीमेल पे अपलोड करके उन पे स्टार लगा रखा है। सो मैं डायरेक्टली अपने स्टार वाले फोल्डर में जाऊंगा एंड नाउ यू सी हाउ टू रीड एन ईमेल। अब मैंने ईमेल रीड करना आपको पूरा नहीं बताया, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट इट। Main region. Primary tab. GI unread. BL daily. Main region. Inbox left parent. Main region. Primary tab panel. Grid unread. Swiggy 1 cashback on unread. Nippon India mute. Start unread. R dash जैसे bloggers. ही Left आर bracket ब्लॉगर R वाले dash. ईमेल को ही खोलते हैं, तो मेल को ओपन करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए और टाइप O, गाइस O फॉर ओपन और एंटर। तो यहाँ मैं O प्रेस कर रहा हूँ और ये मेल मेरा ओपन हो गया। O. Main region. Left ओके, bracket R अब dash यहाँ पर bloggers एक right. इंपॉर्टेंट चीज है, आपने नोटिस किया होगा कई बार ना हमारे एक ईमेल में कई सारे, एक कॉन्वर्जेशन में कई सारे मैसेजेस होते हैं। लेट्स से आपको एक मेल मिला, आपने उसका रिप्लाई किया, वापस से रिप्लाई आया, फिर आपने रिप्लाई किया, तो इनफैक्ट वो एक ईमेल नहीं, वो 4 ईमेल हो गए। एक जो आपने रिसीव किया, आपने रिप्लाई किया, देन रिसीव किया, देन रिप्लाई किया, तो एक कॉन्वर्जेशन की एक लंबी लिस्ट बन सकती है। ओके, कभी कभी आपके पास सिर्फ एक ही मैसेज है। अगर एक ही मैसेज है देन तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट्स इजी। बट हाउ डू वी रीड इट? सो लेट्स से आई प्रेस P हियर। P list with 1 items. R dash bloggers newsletter at r-bloggers.com. Unsubscribe Fry. Mar 8. गाइस जब आप P 750. प्रेस करेंगे, P मतलब जो प्रीवियस मैसेज है, सबसे पहले मैसेज पे जब आप P प्रेस करेंगे, ये आपको 2 या 3 लाइन पढ़ के बता सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, सो मेल को ओपन करने के बाद अगर आप पूरा ईमेल पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहली चीज क्या करेंगे, अपने कर्सर को वर्चुअल मोड में लाइए। ओके, वर्चुअल कर्सर ऑन करिए। आई एम डूइंग इट, वर्चुअल कर्सर ऑन। Use virtual PC ओके, cursor on. यूज कर्सर ऑन। अब ये मेरा रेगुलर वेब पेज बन गया है। आपको ध्यान होगा वेब पेज में हमारे हेडिंग्स भी होते हैं, बटन्स भी होते हैं, लिंक्स भी होते हैं, तो उन सबको एक्सेस करने के शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे अगर आप H प्रेस करेंगे, H फॉर हेडिंग, तो आपका जो कर्सर है वो आपके हेडिंग्स पे जंप करता चला जाएगा। सिमिलरली अगर आप E प्रेस करेंगे तो एलिमेंट्स पे जंप करेगा, अगर आप B प्रेस करेंगे तो बटन्स पे जंप करेगा। तो अब ये नॉर्मल वेब पेज बन गया है। सो ध्यान रखिए, ईमेल अगर आपको पढ़ना है तो वो आप वर्चुअल कर्सर ऑन करके ही ढंग से पढ़ पाएंगे। ओके, तो दोनों चीजों का ध्यान रखिए। नेविगेशन के लिए, कीबोर्ड शॉर्टकट्स के लिए आपको वर्चुअल कर्सर ऑफ रखना है, और ईमेल पढ़ने के लिए वर्चुअल कर्सर आपको ऑन करना है। कीबोर्ड के लिए, शॉर्टकट्स के लिए कर्सर ऑफ रहेगा, और मेल को पढ़ने के लिए ये कर्सर आपका ऑन रहेगा। तो कर्सर मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है। नाउ आई कैन प्रेस डाउन एरो, Heading level 3 link unsubscribe. Mar 8 तो to मार्च me. 8 का है। Show details button menu. Reply more message option. Show अब देख रहे हैं details ये बोल button रहा है menu. शो डिटेल्स। कभी कभी हमें ना डिटेल्स चाहिए होती हैं कि ये ईमेल भेजा किसने है, मतलब आर ब्लॉगर का जो एक्चुअल ईमेल एड्रेस है वो क्या है। तो यहाँ पर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, सॉरी स्पेस प्रेस करेंगे, डिटेल्स वाला पेन खुल जाएगा। देन एक बार एस्केप प्रेस करेंगे और फिर अप डाउन एरो से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अभी हम वो नहीं कर रहे हैं। लेट्स रीड व्हाट्स देयर इन द मेल। Reply more रिप्लाई message मोर, options. Table with 1 columns and टेबल 4 है यहाँ rows. पर। Left bracket R dash bloggers right bracket the Cleveland R user groups journey through and slower, slower. Heading level 2 posts in this newsletter colon list of 6 list N main region calendar ओके, tab keep तो tab. गाइस कभी कभी क्या होगा, आपने एक मेल ओपन किया, आपने अपने कर्सर को ऑन किया मेल को पढ़ने के लिए, बट आपका कर्सर कहीं दूर चला गया, आप मेल को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। Tasks ओके, ये keep क्या tab. बोल रहा है, की बोल रहा है, टास्क पढ़ Tasks रहा है, tab. Contacts कॉन्टेक्स्ट tab पढ़ रहा है, blank. बट आप मेल कैसे Separator and पढ़ेंगे? अब इस पेज पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसको डाउन एरो कर करके ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आप कंट्रोल होम से टॉप पर जाकर डाउन एरो दबाएंगे तो भी काफी टाइम लगेगा। तो क्या तरीका है, आप H प्रेस करना शुरू करिए, H हेडिंग। तो
Wrapping the top. Search Search. heading level 2. Labels heading level 2. Labels heading level 2. Labels heading left bracket r dash Yes. bloggers right bracket देखा the तो ये Cleveland. आप उसी मेल के अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। तो आपको 4 या 5 बार एच प्रेस करना है। उसके बाद आप डाउन एरो या कंट्रोल डाउन एरो से पूरा मेल पढ़ सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए मेल पढ़ने के लिए कर्सर आपका ऑन होना चाहिए। सो अब मुझे लेट्स से वापस जाना है इनबॉक्स में। इनबॉक्स के लिए क्या शॉर्टकट हमारे पास है? GI। बट ध्यान रखिए कर्सर हमारा अभी ऑन है तो GI काम ही नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? हम पहले अपना कर्सर को ऑफ करेंगे, इंसर्ट Z या फिर शिफ्ट स्पेस NVDA के लिए, एंड देन वी कैन मूव टू इनबॉक्स। बट सपोज हमें ये कन्वर्जेशन या तो हमें इसका रिप्लाई करना है और वी वांट टू फॉरवर्ड इट टू सम अदर फ्रेंड। ओके, फॉरवर्ड करने का काफी आसान शॉर्टकट है। आप यहाँ पर लेट्स से मैंने पहले कर्सर को ऑफ किया, Use virtual ऑफ। PC cursor off. तो रिप्लाई के लिए R प्रेस करेंगे, फॉरवर्ड के लिए F। और लेट्स से इस ईमेल में कई सारे लोग हो सकते हैं जो CC में हों। ओके, अगर आपको रिप्लाई टू ऑल करना है देन प्रेस A फॉर रिप्लाई टू ऑल, R मीन्स रिप्लाई टू द सेंडर, मेन सेंडर, एंड F मीन्स फॉरवर्ड। तो लेट्स से मैं मेल फॉरवर्ड कर रहा हूँ। FWD colon left bracket r FWD dash फॉरवर्ड। bloggers. तो नाउ टैब प्रेस करिए, देखिए क्या बता रहा है। मैसेज Message बॉडी। body edit. ओके, मेल तो मैसेज बॉडी हमें लिखनी ही नहीं है बिकॉज सेम मेल फॉरवर्ड करना है। तो शिफ्ट टैब दबाएंगे, शिफ्ट टैब 2 2. किसको Search भेजना field है? extend. तो लेट्स से मैं भेजना चाह रहा हूँ ये रेनू मैम को वापस से। सो RENU। REN extended U. Renew extended select list box. Not ओके, नाउ selected. इट्स Renew Gupta. अनाउंसिंग। हाउ डू आई एड इट? आप टैब प्रेस करिए, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। Main region list ओके, with one और item. एक चीज R और dash. भी है। कई बार क्या है कि जब आप मेल फॉरवर्ड करते हैं तो सब्जेक्ट में लिखा हुआ आता है FWD। सपोज करिए कि आप नहीं चाह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि ये मेल फॉरवर्डेड है। ओके, तो कहाँ जाएंगे आप? शिफ्ट टैब दबाइए, The ये dash 2 select हुआ, contacts. देन इसी Type of टाइप ऑफ response button. रेस्पॉन्स, टाइप ऑफ रेस्पॉन्स स्पेस बार से इसको एक्टिवेट करेंगे। Space expand. Menu. Reply. Reply to move through. फॉरवर्ड, Forward. एडिट सब्जेक्ट। Edit तो हमें subject. एडिट सब्जेक्ट पे जाना है, इस पे एंटर करेंगे। Enter. Leaving menus. R dash bloggers. New. Home. देख रहे हैं W. क्या लिखा F. हुआ है? FWD Foxtrot. कोलन। D. तो इसको Colon. डिलीट Space कर left दीजिए। bracket. तो D. मैंने F. फॉरवर्ड वाली चीज को Blank. डिलीट कर दिया है। मैसेज बॉडी में मैं आ Message गया box. हूँ। Regards. DR. Mode. Top of file. Blank. Regard. DS. The new blank dash तो from इसमें colon R dash. ये पता चल रहा है कि ईमेल कहाँ से सेंड है। अकॉर्डिंगली आप इसको एडिट कर सकते हैं। आई बिलीव इतना सब लोग कर सकते हैं कि आपको क्या चीज सेंड करनी है, क्या सेंड नहीं करनी है। ओके, तो कन्वर्सेशन ओपन करने के बाद अपना कर्सर ऑफ करिए, R प्रेस करेंगे तो रिप्लाई, F करेंगे तो फॉरवर्ड, A करेंगे रिप्लाई टू ऑल। सो मेल को पढ़ना, सेम मेल को फॉरवर्ड करना, रिप्लाई करना, ये भी हमने कवर कर लिया है। मेल ओपन करने के लिए क्या था? आप अपने इनबॉक्स पर हैं, ईदर यू प्रेस एंटर और प्रेस O। ओके, और प्रेस O टू ओपन द मेल एंड देन रिप्लाई फॉरवर्ड, और आप उसको स्टार भी कर सकते हैं। तो गाइस जो हमारे मेल के बेसिक फंक्शंस हैं, मेल को सेव करना, कंपोज करना, ये हमारा हो चुका है। अब हम चैट जीपीटी पर चलते हैं। Escape. Use virtual PC cursor on. Use virtual PC cursor off. GI. Main region. Primary tab panel. Grid. Unread. VL तो Daily ये News. मैं इनबॉक्स पर अपने आ गया हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज चैट जीपीटी? जीपीटी है क्या चीज? जीपीटी एक तरीके का जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स हैं, यानी कि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और इट कैन डू थिंग्स विच ह्यूमंस कैन डू। सो इट कैन आंसर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्पेसिफिकली इट कैन हेल्प ऑल योर लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक जॉब के लिए एक ईमेल लिखना है, तो ईमेल में कई बार हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। ईमेल को कैसे शुरू करें, क्या क्या बातें उसमें लिखें, किस सीक्वेंस में लिखें, इंपॉर्टेंट है। सो एआई इसको आपको इसमें यहाँ पर हेल्प कर सकता है। सिमिलरली, आपको अपना कोई असाइनमेंट एक बनाना है, सो असाइनमेंट में आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ओके, एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो 100% एआई से कुछ कंटेंट जनरेट कर ले रहे हैं। तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग। इनफैक्ट वो आप ऐसे टूल्स हैं जो ये बता सकते हैं कि कितने % आपने एआई से कॉपी किया है। यूज एआई, बट एआई का इस्तेमाल करिए आप हिंट्स लेने के लिए, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, डायरेक्शंस के लिए, गाइडेंस के लिए, बट डू नॉट यूज इट फॉर कंप्लीट कॉपी पेस्ट ऑफ योर असाइनमेंट। ओके, बट ऑफ कोर्स आपको एक अच्छा ईमेल लिखना है,
आपको लेट्स से एक कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए गेस्ट को इनवाइट करना है, उन सब चीज़ों के लिए हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने सर्च इंजन पे जाइए, प्रेफरेबली क्रोम, यू कैन यूज एज ऑल्सो और एनी अदर वेब सर्च इंजन दैट यू लाइक, एनी अदर ब्राउजर दैट यू लाइक। ब्राउजर भी आपकी चॉइस का हो सकता है, सर्च इंजन भी। आई प्रेफर क्रोम एंड क्रोम विद गूगल। सो लेट्स गो टू योर गूगल। Control T. Use virtual PC. Control Shift G. Glee. Control EE.com. Enter. ओके, तो Google.com. लेट्स से आप किसी Selected. भी सर्च इंजन पे हैं, आपका फायरफॉक्स है या फिर आपके पास गूगल है। From Vartika Caption to everyone. Sir, can you please tell what security measures are in place to ensure the privacy and integrity of Gmail conversations when using ChatGPT? Okay, somebody was asking about some security measures. Security measures, like you need to elaborate what specifically you want to ask. Like means what security measures. Like when we use some third-party apps, then we grant the access of our Gmail to those. Let's say कुछ apps ऐसे हैं जो Gmail के साथ integrate हो सकते हैं. Automatic reply वाले कुछ options हैं. From Vartika Caption to everyone. Privacy policies. Privacy policies तो आप Gmail के जाकर पढ़ सकते हैं. You can just go to their settings and privacy section, and then you can turn on and turn off something. So वो थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक है। एडवांस टॉपिक मुझे नहीं कहना चाहिए। दैट मीन्स दैट सिंपली हाउ यू वांट योर प्राइवेसी टू बी व्यूड। लाइक गूगल क्या करता है ना, कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि थर्ड पार्टी के साथ शेयर करता है। जैसे किन मेल्स को आप कितनी देर तक देख रहे हैं, किन लिंक्स पे आप क्लिक कर रहे हैं, और आपने अपने ड्राइव में और चीज़ों में क्या-क्या कंटेंट रखा है। तो ये सारी एक्सेस गूगल के पास है, ओके? और गूगल ये इन्फॉर्मेशन और दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेट्स से आपका कोई भी है, इसमें स्विगी है, ज़ोमैटो हैं और जितने भी हैं, उनके साथ शेयर कर सकता है। तो आप प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें भी एक लिमिट है, आप हर चीज़ को ऑफ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ जीमेल वुड से कि अगर आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री नहीं करते हैं, देन सिंपली आप उसको यूज़ नहीं कर पाएँगे। बट येस, यू आर राइट, हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिनाई कर सकते हैं। तो प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर हम उनको कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बट फॉर अ कॉमन पर्सन, फॉर अ कॉमन स्टूडेंट, like those things are not very crucial at this stage. Okay, कुछ लोगों के privacy concerns हैं, then of course that is very important. They don't want to share any data with any of those service providers. So those people they have some limited access कि हम कितना control कर सकते हैं. So we'll think about it to cover those things in some other session. But today, like, we are focusing more on how to use Gmail in standard view, and like how can we make use of ChatGPT to access our mails in a better way. Okay, so आप अपने किसी भी सर्च इंजन पे गए, then simply type ChatGPT. CHT expand space GPT enter. Slower. Page has 5 regions. ChatGPT Okay, search so results guys, heading level 1. किसी भी आपने अपने ब्राउजर को ओपन किया, then you simply type ChatGPT, and now headings के थ्रू हम नेविगेट कर रहे हैं। सॉरी, हेडिंग्स के थ्रू हम सर्च करते हैं क्या-क्या हमारे पास आया है। Web result with Web site links results. heading level 2. Slower. Alt H. Slower. Alt H. Alt escape. One second. Escape. H. Use virtual list box task switching. Screen sharing meeting controls 2 of 4. Inbox left parent 4900. Inbox left parent when use virtual PC cursor on post attendee -zoom. ChatGPT Google search. ChatGPT escape. Slower. Accessibility links heading left filters and search result web result with ChatGPT visited heading. आप H प्रेस करके इन लिंक पर आ सकते हैं, डाउन एरो के थ्रू भी आ सकते हैं। तो लेट्स से हम इस लिंक पर आ गए हैं। Link Okay, it says ChatGPT. https://chat.openai. Chat.openai. So OpenAI is the main body that owns it. So इस पे क्लिक करते हैं। ChatGPT enter main region ChatGPT Okay. ChatGPT So guys, HT अगर आपने इस पे साइन अप नहीं किया हुआ है, तो सिंपली आप साइन अप पे क्लिक करिए। काफी आसान है एंड बहुत क्विक है। आप साइन अप पे क्लिक करिए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, देन कंटिन्यू करिए, उसके बाद अपना पासवर्ड बनाइए, देन आपके पास एक ईमेल पर वेरिफिकेशन लिंक आएगा। अपने ईमेल पर वापस जाइए और उस लिंक को वेरीफाई कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। यू सी, आपको कुछ भी ऐड नहीं करना अपने जीमेल अकाउंट से या किसी और ईमेल के इनबॉक्स, अपने ईमेल अकाउंट से अपने साइन अप करना है एंड यू आर गुड टू गो। ओके, सो साइन अप पे क्लिक करेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड बनाएंगे, कंटिन्यू करेंगे और ईमेल पे जाकर वेरीफाई करेंगे एंड देन यू आर हियर।
अगेन लेट्स से हमने चैट जीपीटी खोल लिया, साइन अप कर लिया, लॉग इन करेंगे इस अकाउंट में। Escape virtual chat GPT. Slower. Heading level 2. There are no visited. Chat edit chat history तो message chat गाइस जब GPT. आप इसको पहली बार खोलेंगे तो एक इंटरफेस आपके पास आएगा। लेट्स सी क्या क्या हमारे पास यहाँ पर है। Chat तो मैंने GPT. ऑलरेडी लॉग इन कर लिया था। आपके केस में अगर आपने लॉग इन नहीं किया तो आपको पहली बार लॉग इन करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर आप लॉग आउट नहीं करते हैं, यू विल रिमेन लॉग इन। Heading level Chat 2 chat history. history. Chat history navigation New region. chat. New chat. Unlabeled 0 button. अनलेबल 0 बटन। एक थोड़ी सी लिमिटेशन जो चैट जीपीटी में है वो ये है कि इसमें ना बटन से लेबल्ड नहीं है। तो आई ट्राई कॉन्ट्रैक्टिंग देम दैट कि ये बटन अगर लेबल हो जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये किसी भी बटन को डिस्क्राइब नहीं करेगा। From Vardika Kanchan to everyone: what sources can I refer to get a good candidate email? So Link upgrade plan get now GPT it is -4. asking for upgrading plan. अपग्रेड की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी का फ्री वर्जन काफी पावरफुल है। User mode TIFF button menu collapse menu. Chat history navigation chat region end. history. Okay. Main So region. guys, first I will talk a little bit about ChatGPT. Then I'll take your queries from the chat. So kindly bear for a few minutes. So बहुत जल्दी से हम बस 5-10 मिनट में ChatGPT के बारे में समझते हैं. And then we see how can we make use of ChatGPT to write better emails. And then of course I'll take all your queries. In the meanwhile आप अपने आप को unmute करके कोई queries तो पूछ सकते हैं. But फिलहाल better होगा आप ChatGPT के बारे में पूछिए. And I'll take your other queries about email as well. Or let's say let me first take your queries about email, about Gmail. Yes please. अपने आप को unmute करके आप पूछ सकते हैं. Any quick queries about Gmail? Excuse me, sir. Yes please. सर आप पहले नहीं अपना कंप्लीट कर लीजिए, देन द स्टूडेंट विल आस्क द क्वेश्चन. दैट्स Okay, बेटर. fine. I think कुछ लोग chat में लिख रहे थे तो मुझे लगा कि like if they are doing hands on. Anyway, so वापस आते हैं. If the So question guys, are relevant ना, जैसे whatever the topic is you are teaching, हम्म, then you answer. Otherwise, all the question will be taken after the session. that's fine. Yeah, right. It's better. 1408. Okay. So बहुत जल्दी से हम बात करते हैं गाइस. हमने चैट जीपीटी पे साइन अप कर लिया है, चैट जीपीटी पे लॉगिन कर लिया है. लॉगिन के बाद आप अगर इस पेज का नेविगेशन देखेंगे तो आपको इसमें एक दिखाई देगा न्यू चैट हिस्ट्री. देन आपको अपना नाम दिखाई देगा जिस नाम से आपने लॉगिन किया है. देन आपको ये कुछ एग्जाम्पल तौर पे बता रहा है कि आप चैट जीपीटी के साथ क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है, आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली ट्राई दिस. दिस इज रिमार्केबल थिंग, मार्वेलस, अमेजिंग. That means I teach statistics, finance. I do a lot of research, and I also read a lot of books and research papers. उन सब के बाद भी चैट जीपीटी मेरे सिस्टम पे ऑलमोस्ट एक विंडो में ओपन ही रहता है. ओके. सो इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, एथिकल इस्तेमाल कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप इसका मिसयूज ही करें. राइट. इसका बहुत सारे एक एथिकल यूजेस हैं. तो लेट्स सी हम इसको कैसे नेविगेट कर सकते हैं. तो गाइज वेब पेज की तरह यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आपको यहाँ वर्चुअल कर्सर अपना ऑफ नहीं करना है. ये एक रेगुलर वेब पेज है, यहाँ पे अपना कर्सर ऑन ही रखिए. ओके. गलती से अगर आपका कर्सर यहाँ ऑफ हो गया, यू विल फाइंड डिफिकल्ट. तो चेक करके अपने कर्सर को ऑन कर लें. वैसे आपको जरूरत नहीं है, जब आप चैट जीपीटी खोलेंगे आपका वर्चुअल कर्सर ऑन ही रहेगा. ओके. सो यहाँ पर आपको कर्सर के बारे में नहीं सोचना है. नो वरी अबाउट द कर्सर. ओके. सो डायरेक्टली गो टू द क्वेरी. हम चैट जीपीटी पर जाकर कुछ भी टाइप कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प अस इन दैट डायरेक्शन. तो गाइस जो फ्री वाला वर्जन है, इट इज योर जीपीटी 3.5. इट्स वेरी पावरफुल. इसके पहले 3 था, 2.5 था, और अभी जो लेटेस्ट है वो है चैट जीपीटी 4. ओके. सो चैट जीपीटी 4 मैंने हालांकि परचेज भी कर रखा है. फॉर सम आई वाज टेस्टिंग इट, बट आई नोटेड दैट फॉर ए कॉमन पर्सन दिस फ्री वर्जन इज मोर देन इनफ. ओके. सो मैंने काफी कंपैरिजन किया दोनों का. तो चैट जीपीटी 4 अगर आप बहुत एडवांस कुछ कोडिंग कर रहे हैं या फिर आपको कुछ इमेज प्रोसेसिंग करनी है, उस केस में चैट जीपीटी 4 ठीक है, आप उसको बाय कर सकते हैं. इट्स अबाउट इट विल कॉस्ट यू $23 पर मंथ. ओके. सो करीबन आपको 2000 के आसपास मंथली ये पड़ेगा, बट आपको जरूरत नहीं है उसकी. बिलीव मी, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर मोर देन अ ईयर. दिस फ्री वर्जन इज इनफ. तो क्या करेंगे, सिंपली इसमें आप मैसेज बॉक्स में जाएंगे, आप ई प्रेस करेंगे. Message chat GPT ओके. edit. दिस इज मैसेज चैट जीपीटी. गाइस ई प्रेस करके हम यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं. स्पेस दबाइए. ओके. Space main region. नाउ कुछ भी टाइप करिए एंड इट विल हेल्प यू. सो बिकॉज हम जीमेल की ही बात कर रहे हैं,
So why not just write an email, just ask ChatGPT to compose email for us. सपोज करिए मैं यहाँ पर जामिया में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं डॉक्टर रेनू गुप्ता को इनवाइट करना चाह रहा हूँ कि वो हमारे डिपार्टमेंट में आएँ और एक लेक्चर लें, लेट्स से बैंकिंग परफॉर्मेंस पर, कि बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में कैसी रही है। ओके, कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया। मैं डॉक्टर रेनू गुप्ता मैम को इनवाइट करना चाह रहा हूँ और इस एक टॉपिक पर लेक्चर देने के लिए। ओके, सो चैट जीपीटी के साथ अच्छी बात यह है कि आप इसको जो लिखने के लिए कहेंगे इट विल डू। ओके, सपोज करिए कि मैं एक छोटा ईमेल भी लिखना चाह सकता हूँ, एक बड़ा भी, इट डिपेंड्स। सो अब हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे। सो सी व्हाट आई एम राइटिंग। COMPOSE space A N space AIL space OR space E कंपोज एन ईमेल period फॉर मी। space I space WANT space TO space I want to IFVITE invite space Dr. DR space RENU space GUPTA space TO space DELIVER space A space LECTURE space ON space BANKING space PERFOR ANCE परफॉर्मेंस। ओके, period अभी मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। मैंने space क्या लिखा है चैट जीपीटी को, कंपोज एन ईमेल फॉर मी एंड आई वांट टू इनवाइट डॉक्टर रेनू गुप्ता फॉर अ लेक्चर ऑन बैंकिंग परफॉर्मेंस। ठीक, तो अभी मैं इसमें अगर और चीज़ें ऐड कर दूं तो ये बहुत अच्छे से ईमेल को कंपोज करेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मैं कहाँ से हूँ। सो इससे काफ़ी चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। I space AM space D R space M O 8 D space A T I F space F R O M space J M I A space M I L I A I S L A M ओके, I नाउ A बस period आप एंटर प्रेस कर दीजिए, और कभी कभी एंटर काम नहीं करेगा तो टैब दबाइए और फिर एंटर प्रेस करिए। ओके, ChatGPT unlabeled अनलेबल one वन button बटन to मैंने activate टैब press enter दबाया, एंटर कर रहा हूँ। enter वापस से टैब ChatGPT दबा के देखिए, main region इट stop सेज generating button स्टॉप to जनरेटिंग, मतलब अभी ये ईमेल जनरेट कर रहा है। ओके, ChatGPT तो मेल जनरेट ऑलमोस्ट हो गया है। तो अब हम मेल तक कैसे पहुंचेंगे? सो मेन बॉडी तक पहुंचने के लिए आप क्यू प्रेस कर सकते हैं एंड कई बार लाइक इट्स डिफिकल्ट टू रीच देयर। तो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे पहुंचता हूँ। मैं वापस से ई दबाऊंगा, तो ई विल बी जस्ट बिलो द मैसेज दैट आई हैव जनरेटेड। तो मैंने ई प्रेस किया, मैसेज message चैट ChatGPT जीपीटी। अब मैं कंट्रोल अप एरो से ऊपर जाऊंगा। message is this unlabeled thank you please if the lecture is we are I trusted dear DR subject chat compose तो an यू सी email for ये me I मैं अपने उस पर आ गया हूँ, कंट्रोल अप एरो दबा दबा कर। सो ये मेरी मेन क्वेरी थी, मैं क्वेरी आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ। slower compose an email for me. I want to invite Dr. Renu Gupta to deliver a lecture on banking performance. I am Dr. Modatif from Jamia Millia Islamia. गाइस अब जरा ईमेल देखिए आप, ये चैट जीपीटी का ChatGPT रेस्पॉन्स यहाँ से शुरू हो रहा है। subject : invitation to deliver lecture on banking सी इसने performance. मुझे सब्जेक्ट भी दिया। कई बार क्या होता है कि हम ईमेल लिख लेते हैं बट हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार इस मेल का होना क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट क्या लिखना चाहिए। एंड नाउ सी द फर्दर बॉडी ऑफ द मैसेज। Dear Dr. Renu Gupta, I trust this email finds you well. My name is Dr. Modatif and I am a faculty member at Jamia Millia Islamia. I am reaching out to you on behalf of our institution with great enthusiasm and a sense of admiration for your expertise in the field of banking. We are currently organizing a series of lectures on banking performance, aiming to provide our students with valuable insights and perspectives from distinguished professionals in the industry. Recognizing your extensive knowledge and remarkable a lecture at our esteemed institute. The lecture benefit ours if you are may have. Please let and benefit warm regards. एक काफी बड़ा एक अच्छा ईमेल जनरेट हो गया है। तो गाइज अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो इसी को बिल्कुल कॉपी करके अपने जीमेल में कंपोज करिए, पेस्ट करके सेंड कर दीजिए। वंडरफुल। दैट मीन्स अगर आपके पास अपना खुद का कंटेंट होता तो भी आप इतना जल्दी टाइप नहीं कर पाते। सी मैंने सिर्फ 2 लाइन लिखी कि डॉक्टर रेनू को इनवाइट करना है बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस के लेक्चर के लिए, और अपना नाम बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, राइट। और लेट्स से कि आप इस ईमेल से खुश नहीं हैं, आपको इसको पढ़ के मज़ा नहीं आ रहा। सो वापस से अब मैं ई प्रेस कर रहा हूँ, या फिर मेल के लास्ट में जाइए अपने, जो ये मैसेज जनरेट हुआ है रेस्पॉन्स। Dr. left Jamia left unlabeled 0 and left bracket your contact information. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, देन सी मैं डाउन एरो दबा रहा हूँ एक बार, Unlabeled 0 अनलेबल button. 0 बटन, Unlabeled 0 button. अनलेबल 0 Unlabeled 0 बटन। button. Is this conversation helpful? सी इसने 3 बार मुझे बटन बटन बताए बट आई डोंट नो बटन क्या थे। सो मोस्टली इनका सीक्वेंस क्या होता है, जो पहला बटन है वो कॉपी के लिए है। आप जैसे ही इस पर एंटर प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, द एंटायर रेस्पॉन्स वुड बी कॉपीड।
ओके, सेकंड वाले पे अगर आप क्लिक करेंगे देन इट वुड स्टार्ट रीजनरेटिंग. कई बार होता है कि ये ईमेल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ और लैंग्वेज लिखना चाह रहे हैं, सो रीजनरेट. एंड थर्ड वाला इज डिसलाइक, मीन्स आप कुछ फीडबैक देना चाह रहे हैं कि ये रेस्पॉन्स तो बिल्कुल ही बेकार है. तो नाउ यू सी, जो ये 3 बटन है किस सीक्वेंस में है. द फर्स्ट बटन इज कॉपी, सेकंड इज रीजनरेट एंड थर्ड वन इज डिसलाइक. कभी कभी एक फोर्थ बटन भी आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आप इसका ध्यान रखें कि कभी कभी सीक्वेंस चेंज हो जाता है, बट 99% दिस सीक्वेंस इज सेम. फर्स्ट इज कॉपी बटन, देन रीजनरेट बटन, देन डिसलाइक बटन. नाउ आप कॉपी के लिए इस बटन की आपको जरूरत नहीं है. अब अगर आप ये पूरा ही मैसेज कॉपी करना चाह रहे हैं, सी व्हाट ए गुड शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट सी. गाइज रेगुलर जगह पर क्या होता है, आप पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, देन आप प्रेस करते हैं कंट्रोल सी. सिलेक्शन के बाद कंट्रोल सी, टेक्स्ट इज कॉपीड. यहाँ भी सेम चीज है. आप वो अब पहले शिफ्ट और डाउन एरो से टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी दबाइए, टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा. ओके, बट और भी जल्दी आप पूरा का पूरा रेस्पॉन्स ही कॉपी करना चाह रहे हैं, तो सी, ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी दबाया, कंट्रोल शिफ्ट सी, Alert. Last लास्ट response रेस्पॉन्स copy. कॉपीड. ओके, अब मैं इसको ले जाकर अपने वर्ड में सेव कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट अपने ईमेल में पेस्ट कर सकता हूँ. जो छोटी मोटी एडिटिंग मुझे करनी है मैं कर सकता हूँ. ओके, बट सपोज मैं इस ईमेल से खुश नहीं हूँ, ये काफी बड़ा है, तो नाउ आई विल गो टू एडिट. दैट मींस मैसेज बॉक्स में जा रहा हूँ, मैं ई दबा रहा हूँ, Message मैसेज, chat GPT एंड सी space. मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार, मुझे छोटा ईमेल दो, बस 50 वर्ड्स में. तो W R I T राइट, E space. E A I L space I S space J S जस्ट T space 5 Z space O इन R जस्ट D 50 S. वर्ड्स. तो चैट जीपीटी की पावर तभी है जब आप इसको प्रॉम्प्ट सही से दे पाएं. मतलब इट कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉर यू, इट कैन कंपोज एनीथिंग फॉर यू, बट यू नीड टू गिव इट द राइट प्रॉम्प्ट. अब प्रॉम्प्ट कैसे देंगे इसको, तो मैंने पहले ईमेल कंपोज कराया, फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये ईमेल जो है 50 वर्ड्स में कर दीजिए बस. ओके, नाउ अगेन टैब एंड एंटर. Unlabeled one enter chat GPT. Main region. Stop स्टॉप generating. जनरेटिंग, जनरेट कर रहा है अभी, लेट्स वेट. Message chat G mess unbester IMD dear DR subject colon invitate dear DR renew up IMDR mode a tip from 50 Jamie वर्ड्स में हमारे पास ईमेल रेडी है. अगर हम इसको कॉपी करना चाह रहे हैं, अगेन कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी हो जाएगा. लेट्स से आपको इसमें मजा नहीं आ रहा, आप इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं, अगेन मैसेज में जाइए, Message मैसेज chat चैट GPT. जीपीटी. हम यहाँ कैसे जा रहे हैं, प्रेस ई एंड यू विल गो टू दिस बॉक्स, सो स्पेस टाइप कर Space. दीजिए. दैट मीन्स आप इसको और रिफाइन करना चाह रहे हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं, एंड यू आर गुड टू गो. ओके, so this was the basic interface of ChatGPT. So after logging on, press E, you will go to the message box, then start typing. कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, ईमेल कंपोज कर सकते हैं, कुछ अपने लेट्स से आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट्स से आपकी जॉब डेटा साइंटिस्ट की जॉब है, आप अपने जॉब का छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसमें लिखिए, और साथ में आप लिख दीजिए कि मुझे 10 क्वेश्चन बताइए, गिव मी 10 क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फॉर द जॉब ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट. ओके, चैट जीपीटी आपको 10 क्वेश्चन देगा. Okay, and then again in the next message you simply type give me answers in 2 lines for all these questions. So guys, you see it gave you 10 questions, and then it can also give you answers to all these questions. So this is a remarkable tool if you want to prepare for interview, you want to prepare for Viva, you want to prepare for GD or whatever. So you see how powerful is this. आप अपने CV को refine कर सकते हैं. अच्छा, ऐसे ही let's say आपने एक mail already लिख लिया है, आपने एक मेल ऑलरेडी पूरा लिख लिया है अभी, बट आपको डाउट है कि इस ईमेल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. सो व्हाट यू डू, सो लेट्स से E space escape vert wrapping the top message space space गाइस आप blank यहाँ पे लिखिए C O R R E C E करेक्ट दिस. space T H आप I सिंपल S लिखिए here करेक्ट space दिस, और जो भी आपका टेस्ट है उसको पेस्ट कर दीजिए. ओके, तो उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वो सब ये इम्प्रूव कर देगा. तो आप सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को रिमूव कर सकते हो, आप टेक्स्ट को रीराइट करा सकते हो. यू कैन से जस्ट पॉलिश this paragraph. So now you see that means this is a wonderful tool. So for composing good emails, like suppose you want to collaborate with somebody, आप किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को लिख रहे हैं कि आप उनके साथ एक रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं. ठीक, अगर आपकी ग्रामर में ही गलती है तो आप सोचेंगे कितना बुरा इंप्रेशन होगा. व्हाई वुड अ यूरोपियन वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू? So maybe they would feel, oh, your language is not good, so you may not be a good researcher. So language makes the first impression. So what you do,
आप अपने चैट जीपीटी से ईमेल लिखवाइए, थोड़ा बहुत उसको आप एडिट कर लीजिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग, एंड देन सेंड इट. So now you see that composing an error-free email is such an easy task. Okay, and then one more thing. Suppose आपके पास एक बहुत ही बड़ा email आया. Let's say a email that is about 500 words. So आपके पास time नहीं है इतना बड़ा email पढ़ने का. Okay, so what you do, you copy that email. Okay, आप इसको chat GPT में paste करिए और आगे लिख दीजिए just summarize this email for me. Summarize this in few points. तो 500 ईमेल आप 500 वर्ड्स का ईमेल 50 वर्ड्स में समराइज हो जाएगा. तो दिस वे लाइक यू कैन मेक यूज ऑफ चैट जीपीटी सेपरेटली. ओके, नाउ व्हाट पीपल हैव डन, दे हैव क्रिएटेड सम एड-ऑन्स. जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, मेल कंपोज करने के लिए हम नेक्स्ट टैब में गए, चैट जीपीटी में गए, हमने वहाँ पर टाइप किया कि हमें ईमेल लिखना है, किस पर्पज से लिखना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर हमें ईमेल अपना समराइज कराना है. तो कैसे समराइज होगा, मेल हमने कॉपी किया, चैट जीपीटी में गए, वहां पर पेस्ट किया और वहां पर हमने टाइप किया कि ये मेल को समराइज कर दो. ओके, सो दिस वे यू कैन डू इट. बट एड-ऑन्स के थ्रू क्या है, आप अपने ब्राउजर पे जाएंगे और आप लिखेंगे चैट जीपीटी फॉर जीमेल. ओके, क्या लिखेंगे, चैट जीपीटी फॉर जीमेल. तो गाइस आपका जो क्रोम स्टोर है, सो ये क्रोम पे काम करेगा. जैसे क्रोम के ना कई सारे एक्सटेंशंस हैं, there are so many extensions. One of them is like there are so many email helpers जो चैट जीपीटी पे और दूसरे जीपीटी पे काम करते हैं. तो वो एड-ऑन्स भी मैंने करके देखे, बट अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम उनके साथ क्या आई, जो ज़्यादातर एड-ऑन्स हैं वो पेड हैं. मतलब आप उनको मंथ में मुश्किल से 8 या 10 बार इस्तेमाल कर पाएंगे और उसके बाद फिर वो पेड हो जाएगा. मैंने 2-3 एड-ऑन्स ट्राई किए. आई थॉट दैट आई वुड डिस्कस. सो काफ़ी आसान तो है वो, बिकॉज उसमें आपको नेक्स्ट टैब पे जाने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपल क्या करिए, उस एड-ऑन को जीमेल में अपने ऐड कर लीजिए और जब आप मेल कंपोज करें, आप उस एड-ऑन पे क्लिक करिए एंड देन आप वहाँ से लैंग्वेज को करेक्ट कर सकते हैं या मेल को आप एडिट कर सकते हैं. ओके, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कॉस्टली है वो, जैसे 5 पाउंड्स 10 पाउंड्स ऐसे ऐसे हैं. एंड सेकंड थिंग, लाइक आई फाउंड दिस चैट जीपीटी लाइक एक्सेसिबिलिटी के मामले में उनसे बेटर है. जो एड-ऑन्स हैं, मैंने कई सारे ट्राई किए, मोस्टली एक्सेसिबल हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि वो आप उनको ट्राई कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में उनका मुझे उतना मज़ा नहीं आया. व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज एबल टू यूज ओनली 3 or 4 prompts and then it would say buy it. And second thing, a few things were a little inaccessible. Largely ठीक था, it was good. So those who can afford to pay 5 pounds per month, मतलब करीबन 6,000 रुपये साल के अगर आप दे सकते हैं, तो आप एड ऑन को ऐड कर लीजिए. बट मेरा सजेशन तो होगा कि ज़रूरत उसकी नहीं है. आप सिंपली फ्री वर्जन चैट जीपीटी का इस्तेमाल करिए. इट इज़ मोर पावरफुल देन यू इमेजिन. एंड वन मोर स्टफ, as I told you, the power of ChatGPT lies in prompts. That means how you generate a query. So suppose, let's say I know Dr. Renu and I'm inviting her, let's say for a lecture or for, let's say for a research collaboration, कि मैं एक रिसर्च पेपर पे उनके साथ काम करना चाह रहा हूँ या फिर हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं. तो क्या गुरु गोविंद सिंह कॉलेज और जामिया कॉलेज मिलके साथ में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैन बी ऑर्गेनाइज टुगेदर. सो नाउ लाइक आप मैसेज की टोन सेट कर सकते हो. लेट्स से कि आपको मैसेज एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है. इमेजिन करिए आप अपने किसी दोस्त को लिख रहे हो, आपको अपना एक स्कूल फ्रेंड मिला, वो किसी फर्म में भी काम कर रहा है और आप चाह रहे हो कि वो आपका सीवी फॉरवर्ड करे. अब ऑफ कोर्स एक दोस्त को जब आप लिखेंगे तब वो उतना फॉर्मल टोन तो नहीं रहेगा ना, आप कैजुअल एक फ्रेंडली वे में लिखेंगे. तो चैट जीपीटी को आप लिखिए, प्रॉम्प्ट दीजिए दैट काइंडली राइट एन ईमेल फॉर माय फ्रेंड. सो इट विल अंडरस्टैंड कि आपने जब फ्रेंड लिख दिया तो एक इनफॉर्मल ही होगा. यू कैन राइट दैट काइंडली जनरेट एन इनफॉर्मल मेल फॉर मी वेयर आई एम आस्किंग माय फ्रेंड to connect, let's say in a school reunion or a college reunion, or maybe to recommend you for a particular job or kind of. So now you see that means not just composing an email, rather the emotions in the email can be controlled. You decide whether you want to write a casual mail or a formal mail, a technical mail, so whatever you want to write. So the main thing is that keep using ChatGPT and keep refining your prompts. Okay, so the better is the prompt, the better is the output. And again that means regenerate आप कर ही सकते हैं. Now what can you do, like you can generate Escape. a Virtual new PC chat. is escape. So it's quite easy. Simply press Control Shift O and you are into new chat.
Control Okay, Shift O. आप नई चैट पर आ गए हैं. Keep typing, keep using it, and of course, if you want to delete the entire history, then you can just navigate to a name. So Escape. see, Chat GPT. Unused close sidebar. Break. Create. Give me button wrapping the top. Unlabel. User it mode. says Tiff. user Mohammad Atif. Press space. Space. Menu. Customize Customize chat. chat. Settings. 2 of 3. Log out. 3 of So I setting. go to settings. Settings में गए. Enter. User mode. Tiff. Then B press करते जाइए. Enable man archive. Delete all Delete button. all. So आप चाहें तो अपनी जो भी chat history है उसको delete कर सकते हो, archive कर सकते हो, whatever you want. So again, that means there are a number of things that we can do with chat GPT, but right now I'm stopping here, and I'll just I think I should end now. It's too long, so I should rather take your queries. So I hope this is enough from my side, but any queries I would be more than happy to answer. Yes, sir. Some queries are in the chat box only. Yeah, please. Let me have a look at them. Windows Zoom H2 running Windows. Tap screen sharing meeting controls. 7 enter. Screen sharing mode. Audio now muted. Sir, a question has been asked by Pratika that what sources can I refer to get a good hand at email? Audio now unmuted. Okay, so sources काफ़ी सारे हैं. जैसे अगर आप सिंपल टाइप करेंगे जीमेल एंड स्टैंडर्ड व्यू, तो सबसे पहले तो एक गूगल का ही आपको लिंक आएगा, गूगल हेल्प करके आएगा. तो बहुत डिटेल में उसमें सारा कुछ बताया गया है कि आप कैसे अपना कर्सर को ऑन ऑफ करते हैं, जितने भी आपके कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं उनकी बेसिक डिटेल्स वहाँ पर है. नेविगेशन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑन ऑफ करना. तो आई फाउंड दिस लिंक क्वाइट यूजफुल. दैट मीन्स आप सिंपल टाइप करिए जीमेल स्टैंडर्ड व्यू स्क्रीन रीडर. तो ये 2-3 चीज़ें टाइप करनी है आपको, जीमेल स्टैंडर्ड व्यू स्क्रीन रीडर. आप स्पेसिफिकली भी लिख सकते हैं विद एनवीडीए स्क्रीन रीडर, विद जॉल स्क्रीन रीडर. तो पहला तो ये गूगल की तरफ से ये है, हेल्प गूगल की तरफ से. सेकंड आपको मिलेगा फ्रीडम साइंटिफिक का. फ्रीडम साइंटिफिक वो कंपनी जो जॉज बनाती है. सो उनका भी एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है. सो MP4 फॉर्मेट में है, सो इंग्लिश में आप उसको पूरा सुन सकते हैं. आई थिंक हाफ एन आवर का या 1 घंटे का वो है. उसके अलावा एक आई थिंक अमेरिकन फेडरेशन फॉर ब्लाइंड AFB की तरफ से भी यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं 1-1 घंटे के, तो आप उनको भी पूरा डिटेल में सुन सकते हैं. तो ये 3-4 अच्छे सोर्सेज हैं. Okay, thank you, sir. Then, sir, Khushi has asked that can we use both space and enter for selecting an option? Yeah, mostly it works. That means for selection, this space bar is better. But sometimes I've noticed that this setting button was not working with the space bar in Gmail. When I was willing to go to settings, space bar did not work. There you can use enter. So selection of those buttons. But for selection of a conversation, suppose करें आपको एक email delete करना है. ओके, सो पहली बात आपका कर्सर ऑफ होना चाहिए. देन अप डाउन एरो से आप जो आपके ईमेल्स हैं आप उन पे मूव करेंगे, मूवमेंट होगा. देन वहां पर आपका सिलेक्शन ना तो स्पेस बार से होगा ना एंटर से होगा. वहां सिलेक्शन होगा एक्स प्रेस करके, एक्स. ओके, एक्स फॉर मेकिंग अ सिलेक्शन ऑफ एन ईमेल. देन आप उस पे अगर नंबर साइन दबाएंगे, दैट इज हैश, जो हैश साइन होता है. इफ यू प्रेस शिफ्ट एंड 3 इट विल डिलीट द ईमेल. इफ यू प्रेस ई, okay, E for elephant, if you press E it will archive it. Okay, and if you press shift 1, that is your exclamation mark, it will spam the email. that means आप चाह रहे हो कि ये spam में चला जाए, फिर ताकि उस सेंडर के सारे ईमेल स्पैम में जाएंगे, फिर तो आप उसको स्पैम भी कर सकते हैं. Okay, okay, sir. ओके, Thank you तो for this. सिलेक्शन के लिए हम दोनों यूज कर सकते हैं. वो बटन्स के रिगार्डिंग है, या फिर आपका लेट्स से कुछ चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, तो वहां पर हमें सिलेक्शन के लिए स्पेस बार यूज करना चाहिए, बेटर है. Okay, sir. Okay. Sir, then Anisha is asking about your views on AI for the next 10 to 20 years and which jobs would replace 30. by then. Of course, that means the repetitive jobs of a routine nature would be replaced, and like new jobs would come up. Like we need people who can make use of chat GPT and Excel. Like I remember एक Excel में query में solve करना चाह रहा था, और मुझे उसको घंटों लग गए solve करने में. Like it was very difficult query. Then I took help of chat GPT, और 15 मिनट में मैंने वो solution निकाल लिया जो घंटों में नहीं निकाल पा रहा था. Similarly, like I do a lot of coding because I teach statistics, finance. So कोडिंग में कई बार क्या होता है कि आपका एक बड़ी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है,
देन काफ़ी सारी हेल्प आप गूगल से भी लेते हैं, एंड सभी लोग लेते हैं, दैट मीन जो प्रोफेशनल कोडर्स हैं वो लोग भी लेते हैं, पीपल हु हैव डन देयर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इवन दे डू। तो पहले हम क्या करते थे, एक कोड लिखा, कोई आपके पास एक आइडिया आया कि यार इसको हम कैसे करेंगे, सो हम गूगल करते थे, वहां से एक आइडिया मिला ऐसे कर सकते हैं। बट अभी चीजें क्या आसान है, आप अपना सिनेरियो चैट जीपीटी में टाइप कर दें कि हमें ये चाहिए, ओके, सो इट कैन क्रिएट कोड फॉर यू। Mostly code runs well, but even if the code doesn't run well, like it gives you a lot of good directions, आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, ओके काम करना कैसे है, दैट मीन्स आपको एक एक डायरेक्शन मिल जाती है। सो चैट जीपीटी या एआई जितने भी हैं, ट्रेडिशनल जॉब्स को रिप्लेस करेगा, बट नई जॉब्स आएंगी। जैसे एनिमेशन में नई चीजें आ रही हैं, लाइक एआई के थ्रू अब आप वीडियोस भी बना सकते हो, अभी तक तो इमेजेस था। दिस फ्री वर्जन ऑफ चैट जीपीटी इमेज नहीं बना सकता, इट कैन ओनली क्रिएट टेक्स्ट, बट इफ यू लाइक सब्सक्राइब दैट इज अ पेड वर्जन विच इज अबाउट $23 पर मंथ, $20 के आसपास है, टैक्सेस लगा के आपका $22-23 हो जाता है वो। उसके थ्रू आप एक छोटा सा सिनेरियो लिखें एंड इट कैन क्रिएट इमेजेस फॉर यू। इनफैक्ट वीडियोस वाला आई थिंक अभी पब्लिक के लिए नहीं आया है, बट वीडियोस भी आप बना सकते हैं। तो मीन्स लाइक नॉट चैट जीपीटी एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस, इट विल रिप्लेस अदर ह्यूमन हु नोज एआई। आप एक चीज समझिए कि 1920s में आप इमेजिन करिए, अब से 100 साल पहले, उस टाइम पे जो जो ट्रैवलिंग थी वो सारी हॉर्स कार्ट्स के थ्रू होती थी, कि भाई घोड़ा गाड़ी है या फिर इस टाइप की बैलगाड़ी है, वो पूरा ट्रांजैक्शन था। इमेजिन करिए उस टाइम पे अचानक से नई नई फर्म्स आ गई हैं जो अब कार्स बना रही हैं। तो अब कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी जो जो कॉटेज और इसकी हॉर्स कैरिज की थी, कि भाई आपको घोड़े को अस्तबल चाहिए उनके खिलाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको जगह चाहिए, वहाँ पे व्हील्स बन रहे हैं उनकी, उनका अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक किए जा रहे हैं। वो पूरी इंडस्ट्री 20 साल में खत्म हो गई ऑटोमोबाइल्स के आने से। तो क्या जॉब्स ही खत्म हो गई भाई? उसके बाद इंजीनियर्स आ गए, मैकेनिक्स आ गए, ड्राइवर्स आ गए। सेम विद एआई, अब नए लोग आएंगे जो इसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे। सो जॉब का ऑफ कोर्स द नेचर ऑफ जॉब विल चेंज। Nature of job. Okay, sir. Okay. Got your point. Thank you so much, sir, for this impactful session. The interactive and informative session led by you leaves us with invaluable insights. Now, closing in, we have essential vote of thanks by our convener, Mr. Ritesh Kumar, sir, expressing gratitude to everyone who contributed for the success of this webinar. Convener Ritesh Kumar, sir, has consistently served as an unwavering pillar of strength for our society. He is distinguished faculty member at Sri Guru Gobind Singh College of Commerce. He has successfully completed his MCom and MPhil and is actively pursuing his PhD from prestigious Delhi University. With more than 10 years of teaching experience, he serves as an inspiration and guiding force for his students. I request sir to kindly present the vote of thanks. Thank you. Am I audible? Yes, sir. you Yes, are. sir. Okay. So being a convener of a Jagriti Society, it's my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. First, I would like to thank our principals due to some their busy schedule, because today is an event in our college, so sir is busy there, but their support are always there for us. So thank you very much, principal sir, for your continuous support, and we will continue to look forward for your guidance and further inspiration. And second, I express my sincere thanks to our chief guest, Dr. Mohammad Atif sir, for beautiful this lecture, because this lecture is very informative. And today, nowadays, we all use a chat GTP, but the many student does not know how to use in a better way. So it's very, very informative for those students who want to use, but not to use because of their lack of knowledge. So thank you very much, sir. You accept our invitation and come for a lecture. And next, I would like to thanks to Renu ma'am, those who took the initiative, because their effort is very important. Without their effort, this event can't be possible. Thanks to all the colleagues, students, participants, those who spare their time for this event. Thank you very much to all of you once again. Let's cherish this 15th annual webinar as a milestone in our collective journey. We are honored to have Mohammad Atif as our chief guest, adding prestige to our celebration. Thank you, convener Professor Ritesh Kumar sir, co-convener Professor Renu Gupta ma'am, and all the great audience for sharing your valuable time with us.
Now we request all of you to kindly turn on your cameras for a group photograph. Yes, good. Yeah. A request to all of you, please open your camera. Mhm. Guys, who will be taking the photo? Yeah, we will take a photo. Let's wait. Other also open their camera, no? So I request to all of you, please open your camera. Utkarsh, Madhav, Mehar, Anusha, Yuvraj, please open your cameras. No, we take a group photo. Don't worry. That's fine. Dhruv, Avneet, Vaibhav. Okay, I have taken the group photo. Thank you all for being a part of this special day. E-certificates and a link for the feedback form will be shared on your mails, and you all may leave now. And we are really grateful to have you today with us. Thank you. Thank you. Thank you so Atif. much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Thank Asif, you sir. so Thank you much, so sir. much. Thank you, sir.